Good afternoon, all of you. I, CA Kuldeep Gupta, Vice Chairman Jaipur Branch, welcomes you all in this two CPRs virtual meeting on very hot topic of the time, that is practical training or practical aspects of the e-filing of the tax audit report and other e-forms. आज हमारे साथ जो स्पीकर हैं वो नाम से भी धाकड़ सर हैं, और जो आज का टॉपिक है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स की हमारे पास रेगुलरली क्वेरीज आ रही थी कि सर इस पे कोई सेशन होना चाहिए। बट सेशन होने के पीछे सर जो स्पीकर का या जो आपका टीम का जो मोटिव होना चाहिए वो है कि जो हमें प्रैक्टिकली ये सब चीजें बताएं कि हाउ टू फाइल टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, what are the limitation, what are the important points to be taken care during the filing of tax audit report, what are the steps to be taken during filing of tax audit report. Today with us very senior member of the Jaipur branch, CA SS Dhakad sir. First of all, I would like to welcome Dhakad sir on behalf of all management committee. Welcome you, Dhakad sir. And before starting this session, I would like to mention some important points or some upcoming events of the ICI. On 3rd and 4th of December, there are regional council elections and central council elections. It is requested all of you, please be present in this election program and do cast your vote, and also motivate your near and dear who are chartered accountant, whether in practice, whether in job, whether in business, or any other field of the working professionals. Before head over to Dhakad sir, it is my honor and privilege, feeling privileged to speak about Dhakad sir. Dhakad sir is a very senior member of Jaipur branch. He is MCOM, LLB, FCA, DSA and certificate course on concurrent audit. He is a senior partner of Vikas and Associate CA Jaipur, specialized in statutory audit, internal audit, system audit, management audit, tax audit, and of large and medium-sized companies, organizations, and the PSUs. He was also co-opted member of the Committee of Export of CA Services and WTO of ICA for the year 1920. Speakers of various student courses like GMCS, orientation program, organized by various branches of ICI, worked as a guest faculty at University of Law College, Jaipur, and Institute of Cost Accountant of India, Jaipur chapter as well. Written articles for monthly newsletters of Jaipur branches, and participated as a career counselor of chartered accountancy course from last so many years. Delivered lectures on at study circles, Jaipur branch, and various platforms of the professional forums. Worked as a member of a study group of the Institute of Chartered Accountant of India on RWAT 2003. I formally once again welcomes you, Dhakad sir. Over to you, sir. Thank you. धन्यवाद कुलदीप जी। सबसे पहले मैं जयपुर ब्रांच का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस हॉट टॉपिक के ऊपर ये एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जो है अपना प्रोग्राम रखा है। सभी पार्टिसिपेंट का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो है समय निकाल रहे हैं और इसको सुनने के लिए आए हैं। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो हमारा नया सिस्टम है, नई वेबसाइट है, उसके बाद में ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले जो इनकम टैक्स की साइट है वो टीसीएस मेंटेन करती थी। अभी जो इनकम टैक्स की साइट है वो इन्फोसिस मेंटेन कर रही है। 1 जून से 7 जून तक सरकार ने समय मांगा था, और 7 जून के बाद में ये कहा था कि भाई सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन हम प्रोफेशनल्स के लिए तो अभी तक जो ये साइट है बड़ी दुविधा का कारण बनी हुई है। बहुत सारी चीजें हैं। उसी जो है टर्म में सरकार ने जो है टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट्स भी बढ़ाई हैं। तो अभी जो हमारा जिसको कहते हैं समय है वो टैक्स ऑडिट के रिपोर्ट्स फाइलिंग का आ गया है। 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। आज हम 22 नवंबर पर हैं, तो कुल मिला के अपने पास में 1.25 महीने का समय है। इस बीच में हमको इंडिविजुअल्स की रिटर्न्स भी फाइल करनी है, आरओसी के भी जो है फाइलिंग है, एमसीए की जो है एनुअल फाइलिंग्स भी आपको 31 दिसंबर तक करनी है।
आपको जीएसटी के अंदर GSTR 9 और 9C भी फाइल करना है। तो बहुत ही जो है आपका प्रेशर का समय है। उस प्रेशर के समय के अंदर हम कैसे जो है टाइम को मैनेज करें। जब इस टैक्स ऑडिट फाइलिंग के ऊपर मैं जयपुर ब्रांच गया था तो कुलदीप जी से बात हुई थी, तो कुलदीप जी बोले कि सर बड़ी दिक्कत आ रही है कि कैसे करें। तो मैंने कहा भाई कि हम प्रैक्टिकली रूप से इसको फाइल कर चुके हैं। तो कुलदीप जी ने कहा कि सर बाकी मेंबर्स को यदि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें तो बहुत बेहतरीन होगा। तो हमने कहा कि बहुत ही बढ़िया है। तो ये सीखने सिखाने का दौर है। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ या जो मैं बताऊंगा, मैं आपको लाइव डेटा के साथ में चीज बताऊंगा कि भाई कैसे फाइल करना है, किस तरीके से करना है। सेकंड, हो सकता है कि बहुत सारे आपके पास में शॉर्टकट हो, आप भी क्योंकि सभी टेक्नोलॉजी से जो नए मेंबर्स जुड़े हुए हैं वो टेक्नो सेवी हैं, उनकी टेक्नोलॉजी कहीं बहुत बेहतरीन हो सकती है। तो कोई नई आपके पास में कोई नया तरीका है, कोई शॉर्टकट है तो वो भी आप बता सकते हैं। मेंबर्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, केवल इसी बात का अपना एक मोटो है। और सब मेंबर्स जो है इस टैक्स ऑडिट के सीजन को अच्छी तरह करें। साइट पे अभी भी बहुत सारी तकलीफ है, साइट में रोज कुछ न कुछ अपडेशन आता है। तो हर बार जब भी कोशिश करें कि आप कोई भी फाइल करें उससे पहले जो यूटिलिटी है उनको आप अपडेट कर लें, उसके बाद ही अपन कोई चीज को फाइल करें। तो दोस्तों, टैक्स ऑडिट फाइलिंग के लिए सबसे जो जरूरी है कि आप किस तरीके से आपको चार्टेड अकाउंटेंट को ऐड करना है, किस तरीके से डिजिटल सिग्नेचर को ऐड करना है, किस तरीके से हमको जेसन फाइल तैयार करनी है और किस तरीके से अपलोड करना है। ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। पहले हम जो टीसीएस के साइट पे देखते थे तो टीसीएस के साइट के हम आदी हो गए थे, क्योंकि ई फाइलिंग का जो एरा चालू हुआ था वो 2006 में चालू हुआ था। और 2006 में जब पहली बार ई फाइलिंग आई तब भी ऐसी ही तकलीफ आई थी। और फिर धीरे धीरे रिटर्न फाइलिंग के बाद में फिर टैक्स ऑडिट ई फाइलिंग हुआ, उसके साथ अटैचमेंट चालू हुए। तो अब साइट चेंज है, कुछ उसमें नई चीजें हैं, कुछ पुराने से हटके है, कुछ डिफरेंट है। तो हमको उन सब चीजों को देखना है। तो यहाँ पर अपने को सबसे पहले किसी भी क्लाइंट की बात करेंगे। मैं आपको जो है स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अपनी। आप इसको पकड़ के साइड में भी ले जा सकते हो। और यहाँ से ये इनकम टैक्स की आपके साथ साइट है। यहाँ पर कभी भी सबसे पहले जरूरी है कि आपको जिस भी फॉर्म के लिए जाना है, किसी के लिए जाना है, तो सबसे पहले आपको ऐड सीए करना होगा। ऐड सीए करने के लिए आपको अपने जो असेसी है उस असेसी का आपको लॉगिन करना होगा। तो आपकी इनकम टैक्स की साइट है, मैं यहाँ पर अपने किसी एक एसएससी का मैं लॉगिन करता हूँ। सर आपकी इनकम टैक्स वाला साइट वाला विंडो नहीं दिख रही है, आप विंडो भी चेंज। इनकम टैक्स की साइट शेयर करी हुई है, नजर नहीं आ रही है अभी? हाँ सर, वो वाली स्क्रीन शेयर करो सर। अभी आपका वो फोल्डर वाली फाइल खुली हुई है स्क्रीन पे। Meanwhile, it is also requested to all the members कि आप जो भी अपने ऑडिट स्टाफ हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनको भी जरूर ये वीडियो दिखाएं और ये पूरा जो 2 घंटे का प्रोग्राम है वो जरूर दिखाएं, क्योंकि ये जो अभी ऑडिट का जो सीजन रहेगा अपने लिए सभी प्रोफेशनल्स के लिए, उसमें कहीं ना कहीं आपकी टीम में अपने ऑडिट स्टाफ का और आर्टिकल्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा।
तो उनको भी इस जो पूरा प्रोग्राम है उससे कनेक्ट रखिए। ओवर टू सर। ये मैंने जैसे अभी एक शेयर करिए, यहाँ पर जो है आपको ये ऑथराइज पार्टनर का एक वो दिखा हुआ है। यहाँ पे ऑथराइज पार्टनर है, इसमें आप माई चार्टर्ड अकाउंटेंट करेंगे। माई चार्टर्ड अकाउंटेंट में जाएंगे। अभी जैसे यहाँ पर कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, इसके अंदर आपको ये ऐड सीए का एक टैब दिया हुआ है। इस ऐड सीए में आप करेंगे, जिस भी सीए को आप यहाँ पे आपका जो मेंबरशिप नंबर है आप यहाँ डालते हैं तो ये आपका नाम आ जाएगा और इस जगह पर आप उसको ऐड कर देंगे। ये आपसे बिल्कुल मैसेज पूछ रहेगा, आर यू श्योर यू वांट टू ऐड द सीए, आप है तो ये आप कंफर्म कर देंगे तो ये आपका एक मैसेज आ जाएगा, रिक्वेस्ट फॉर एडिंग सीए हैज बीन सक्सेसफुली, ट्रांजेक्शन आईडी इज दिस वन। अब यहाँ पे पहले हमको जब पुराने टीसीएस साइट के अंदर आप ऐड सीए करते थे और तो उसका कहीं एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज अब इस नए में आपने जैसे सीए ऐड किया है, अब अपने को जो है एआरसीए वाला अपना जो लॉगिन है उसको आपको करना पड़ेगा और वहां से जाके आपको इस जो इन्होंने सीए एक्सेप्ट किया। सर आपका म्यूट हो गया सर। छोटा करना था, मिनिमाइज वाला। इसके अंदर आपको, क्योंकि पहले एक तरीके से आपका फिजिकल हो गया कि हम जो किसी को अपॉइंटमेंट देते हैं, अपॉइंटमेंट के बाद में आपका एक्सेप्टेंस आ गया, तो ये आपका डिजिटली अपॉइंटमेंट एंड डिजिटली एक्सेप्टेंस आ गया है। जैसे ही जो है आपको क्लाइंट ने आपको ऐड सीए किया, वहां पर जाके आपको सीए के रूप में उसने अपॉइंट कर दिया, यहाँ पे फिर आप अपना एआरसीए वाला जो लॉगिन करेंगे और वहां पर आपको जो उसके अंदर आप एक्सेप्टेंस देंगे। ये आपका आ गया, जो आपके मेंबरशिप है एआरसीए का जो लॉगिन है उसमें आपने ओपन कर लिया। यहाँ पे पेंडिंग एक्शन, वैसे तो आप अपने सारे पेंडिंग एक्शन यहाँ पर से देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके पेंडिंग एक्शन हैं, लेकिन इस पेंडिंग एक्शन में जाके आपकी ये वर्क लिस्ट आपकी ओपन होगी। इसमें आपके क्या क्या पेंडिंग एक्शन है, कैसे हैं, वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। अब अब ये देखिए कि कई बार साइट के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, अपन ने वहां पर ऐड किया था सीए को, लेकिन स्टिल जो है मेरे उसके अंदर नहीं आ रहा है, तो आपको अगेन दोबारा जाना है, वो दोबारा देखना है कि क्योंकि ये साइट में अभी ये प्रॉब्लम है। कई बार आपने ऐड सीए किया लेकिन आपको नजर नहीं आएगा, हो सकता है वो 5 मिनट बाद में, हो सकता है कई बार आपको 10 मिनट बाद में ये नजर आए, लेकिन जैसे ही आपको नजर आएगा तो यहाँ पर आपका जो है पेंडिंग, ये जो जैसे यहाँ पे था रिक्वेस्ट रिसीव्ड होगी, आप यहाँ पे उसको एक एक्सेप्ट का जो बटन आएगा, उस एक्सेप्ट का ये बटन है, जैसे ही आप एक्सेप्ट का बटन दबाएंगे
यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो सीए है वो ऐड होगा। अब कुछ अभी जो है साइट के अंदर कई बार चीजें आपको बहुत डिले शो करती हैं, आपने ऐड भी कर दिया तो भी आपको कई बार डिले नजर आएगा, तो इसमें अपने को बहुत जल्दी नहीं है, पेशेंस रखना है। साइट तो कई बार जो है थोड़ा सा जो है बिहेव करती है, तो इस तरीके से आपको ऐड सीए कर लेना है। जब आप सीए ऐड कर लेंगे तो इसका मतलब आपने सीए को एक्सेप्ट कर लिया है, सीए ने आपका। तो अब वापस से जब आप किसी भी क्लाइंट का जो है खोलेंगे तो अब वहां पर आपको जो है टैक्स, अब यहाँ पर आपके दो चीज हो सकती है। एक तो नया सीए मैंने आपको बताया कि आपको ऐड करना है। अब दूसरा इश्यू हो सकता है कि भाई आपको कोई पुराना सीए है वो उसकी जगह आपका चेंजेज आया हो, तो आपको पहले पुराने सीए को डीएक्टिवेट करना होगा, या फिर आपका जो है खुद पार्टनर भी यदि आपका चेंज हो गया तो पुराने सीए को हम डीएक्टिवेट करेंगे और नए सीए को हम ऐड करेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो फर्म है, हो सकता है कि एक बार आपने साइन करी है, कुछ ओवर ए पीरियड आपका एंगेजमेंट पार्टनर में देर इज ए चेंजेज, तो एंगेजमेंट पार्टनर बदल गया है, तो उस केस में आपको सीए को डीएक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। वहां पे जब हम फॉर्म असाइन करेंगे तो आप किस चार्टेड अकाउंटेंट को, किस पार्टनर को आप अपना फॉर्म असाइन करना चाहते हैं वो वहां आप असाइन कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप का जो है। अब आता है कि नेक्स्ट जो स्टेप है कि आप अपने सीए को कौन कौन से फॉर्म कैसे कैसे और किस जगह से आप असाइन करेंगे। मैं अभी आपको फिर अगेन एक एक असाइनमेंट करके बताता हूं कि किस तरीके से जो आपको असाइन करना है। अब यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पे जब जाते हैं माई चार्टेड अकाउंटेंट, इसमें ऑलरेडी मान लीजिए ऐड है। अब इस ऐड को आप चाहें तो यहाँ पे इसको कोई दूसरा सीए आप रखना चाहते हैं उसको आप ऐड कर सकते हैं। और आपको अब जैसे यहाँ पे कोई इनएक्टिव है तो उसको आप पुराना कोई पार्टनर है उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे पुराने पार्टनर हैं उनको एक्टिवेट करना हो तो ये यहाँ पर आपका एक्टिवेट हो जाएगा और अगेन आपका श्योर ऐड हो जाएगा। तो ये अब यहाँ पे अगेन, अब ये आपके फॉर्म जो असाइन है ये दो आ गए। आप किसने पार्टनर को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, आप अपने किसी पार्टनर को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। किसी भी पार्टनर को आप चाहें तो फॉर्म असाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपका देखिए किसी कंपनी के केस में बात करें तो आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हो सकती है, आपका जो है 29B हो सकता है जो 115 जेबी के अंदर मैट की रिपोर्ट हो सकती है। तो ये कोई जरूर, या आपका ट्रांसफर प्राइसिंग का आपका ऑडिट हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग का सेक्शन 92E का 3CE भी हो सकता है। तो आप किस पार्टनर को कौन सा फॉर्म असाइन कर सकते हैं, ये आपका डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स आ सकते हैं, किसी भी मल्टीपल ऑडिटर्स हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एक, जैसे टैक्स ऑडिट हो सकता है आप किसी एक फर्म से करवा रहे हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग की ऑडिट किसी और फर्म से करवा रहे हैं, या 29 जेबी का जो है 115 जेबी जिसमें फॉर्म 29B फाइल होता है वो आप किसी थर्ड सीए से भी करा सकते हैं। तो यू कैन ऐड द मल्टीपल नंबर ऑफ द चार्टेड अकाउंटेंट, मल्टीपल नंबर ऑफ द ऑडिटर्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। यहां पर आपको किसको क्या फॉर्म असाइन करना है वो यहाँ पे देखना होगा। अब यहाँ पे जैसे ही मैं असाइन फॉर्म करता हूं, ये देखिए यहाँ पे इसका ऐड फॉर्म। अब देखिए एक जब शुरू शुरू में आई थी तो यहाँ पे जब हम देखते थे तो एक बड़ा ये वाली जो आपको नजर आ रही है, ये जो शुरू के अंदर ये वाला जो लाइन दिया हुआ है कि फॉर असाइनिंग 3 CA इनिशियली इट वाज नॉट अवेलेबल,
हमने इसमें ग्रीवेंस भी डाली थी। तो भाई ये हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज कहाँ से ऐड करनी है, क्योंकि यहाँ से जैसे ऐड फॉर्म करते हैं तो आपको जो है 10 भी नजर आएगा, जो आपका ट्रस्ट का जो है ऑडिट है, 10 डबल भी नजर आएगा, 10 बीबीसी नजर आएगा आपको यहाँ पे। ये देखिए 10 ये आएगा। यदि आपको कोई ट्रस्ट की ऑडिट करनी है तो आपको यहाँ से सीधा लेना है। आपको यहाँ से जो है 15 सीबी के अंदर यदि आपको ऑथराइज किया है तो भी यहाँ लेना है। आपको जो है 115 जेबी के तहत अपना जो है मेट की ऑडिटर आपको अपॉइंट किया है तो भी यहाँ पे लेना है। और ये देखिए ट्रांसफर प्राइसिंग 3CEB वो भी आपको यहीं से लेना है। इसी तरीके से आपका यदि 3CAJ इन सारे फॉर्म्स के लिए इस जगह से ही आपको ऐड फॉर्म करने हैं। क्लियर है सर? अब यहां पर बहुत क्लियर कट इन्होंने लिखा है कि यदि आपको फॉर्म 3CA 3CB ये यदि आपको असाइन करना है तो आपको ये टैब यहां से नहीं नजर आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ई फाइल में जाना है। ये ई फाइल में आप गए और इनकम टैक्स फॉर्म पर आप जाएंगे। इनकम टैक्स फॉर्म पर जाकर आप फाइल इनकम टैक्स फॉर्म करेंगे। फाइल इनकम टैक्स फॉर्म करेंगे तो देखिए एक तो ये वाला जो फॉर्म है 10IC, एक कंपनी इज आपका कोई भी कंपनी है यदि वो 115 BAA का जो बेनिफिट लेना चाहती है 22% वाला जो टैक्स का स्लैब है उसमें जाएंगे तो हमको यहाँ से उसको कंपनी जो अपना फॉर्म यहाँ से फाइल करेगी। लेकिन 3CA 3CD के लिए आपको इस वाला टैब पर जाना पड़ेगा, पर्सन विद बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम। यहाँ पर आपको देखेंगे तो ये बहुत सारे 10 वाले फॉर्म है, आप इसको ड्रॉप डाउन जाते रहेंगे। उसके बाद में आप फिर नेक्स्ट करेंगे अगेन। अब जैसे ये कंपनी का है तो आप रिपोर्ट ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन आप इस वाले पे करेंगे। यदि नॉन कंपनी एसएससी है तो 3CB और 3CD के अंदर आप ऐड फॉर्म करेंगे। ये आप यहाँ पर जैसे किया, यहाँ पर आपको फॉर्म आपके ओरिजिनल है रिवाइज है, ये ऑप्शन पहली बार दिया है क्योंकि हमको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर लिमिटेड पर्पज के लिए इस साल से रिवाइज करने का मौका दिया है। पर्टिकुलरली सेक्शन 43B को लेके हम बात करें तो वहां पर कई बार ये होता था कि आपने ऑडिट रिपोर्ट जब तक सबमिट करी तब तक ड्यू डेट नहीं थी आपकी रिटर्न फाइलिंग की, तो कई बार आपका जो है रिटर्न फाइल आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के बाद में 43B के पेमेंट हुए हैं लेकिन रिटर्न फाइलिंग से हो गए। तो उस पर्टिकुलर पर्पज के लिए इस साल से आपकी टैक्स ऑडिट फाइलिंग को रिवाइज करने का जो है ऑप्शन दिया है। तो यदि आप अपनी जो है ऑडिट रिवाइज कर रहे हैं तो आप इसमें जो है रिवाइज को ऑप्ट करेंगे, अदरवाइज आप ओरिजिनल सेलेक्ट करेंगे। असेसमेंट ईयर आप 21-22 आपने सेलेक्ट कर लिया। जो सीए आपने, अब देखिए यहाँ पे 2 सीए हैं, आप किस सीए को क्या फॉर्म असाइन करना चाहते हैं वो आप दें। मान लीजिए मैं इन मेंबर को असाइन करना चाहता हूं तो अब देख यहाँ पे अभी एक ये नया फीचर दिया है, दिस वन अटैच फाइल। यहाँ पे आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अदर्स मांग रहे हैं कि आप अपनी सपोर्टिंग में यहाँ पर अटैच करिए, लेकिन अभी ये ऑप्शनल है। तो अभी मैं यहाँ पे क्योंकि हम बाद में जब टैक्स ऑडिट फाइल करेंगे तो ये सब चीज हम अटैचमेंट करेंगे ही, तो अभी यहाँ पर ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो अपनी बैलेंस शीट जो आपने साइन कर दी है उसको आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि अभी यहाँ पे अटैच नहीं करना है तो कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर स्टिल आपके ये फॉर्म जो है असाइन हो जाएंगे। ये आपको कंटिन्यू करना है। अब आपने ये आ गया, यू हैव सक्सेसफुली एडेड दिस वन टू फाइल योर फॉर्म। अब जैसे ये आपका फॉर्म 3CA 3CD आपने अगेन अब मेरे को जो है ARCA में जाना है और वहां पर से मुझे एक्सेप्टेंस लेनी है अपने मेंबर की, क्योंकि आपने असाइन कर दिया तो ही नहीं होगा। अब मेंबर उसको जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक जो है फॉर्म आपको कहीं पर भी नजर नहीं आएगा।
तो यहाँ पे फिर अपन ARCA का जो हमारा ऑडिटर वाला पैनल है उसको हम ओपन करेंगे। अब यहाँ पर आपका फिर अगेन आप पेंडिंग एक्शन में जाएंगे। आपको अगेन यू शुड गो टू दिस वर्क लिस्ट। वर्क लिस्ट में जाएंगे, देखिए यहाँ पर आ गया आपका ये जो है, आप अभी हमने जो फॉर्म असाइन किया था वो यहाँ पे नजर आ गया है। तो पेंडिंग फॉर एक्सेप्टेंस, ये आपकी एक्सेप्टेंस के लिए पेंडिंग है, ये इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस ये दोनों सिचुएशन जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया, अब आपको जब भी कोई फॉर्म असाइन होगा या आपको सीए आप करेंगे या आप एक्सेप्टेंस देंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कंटिन्यूअस मैसेज आएगा कि इस पार्टी ने आपको फॉर्म असाइन कर दिया है और ये वाला फॉर्म आपको असाइन किया है, या इस वाली पार्टी ने इस वाले आपके क्लाइंट का जो फॉर्म आपने एक्सेप्ट कर लिया है, इसने आपको चार्टेड अकाउंटेंट अपॉइंट किया है, इसने आपने जो है चार्टेड अकाउंटेंट की एक्सेप्टेंस दे दी है। जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है और जो मेल है उसके ऊपर आपको ये कंटिन्यूअस से इंफॉर्मेशन रहेगी। अब आता है कि अब ये हमारा एक अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर हो गया। किसी को कोई इंटरेक्टिव सेक्शन रहे, यदि कहीं सेशन रहे, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो अपन इसको रिपीट कर सकते हैं। कुलदीप जी, यदि कोई किसी मेंबर को क्वेरी हो या समझ में नहीं आ रहे हो या और कोई तकलीफ हो तो हम इसको अपन आगे जोड़ सकते हैं, दोबारा रिपीट कर सकते हैं या आगे कंटिन्यू करें। It is requested to members, if you have any query, please raise hand option is there. You can use this option for any query or for any clarification or any repetition of the session. I think sir continue sir. ठीक है, तो ये हमारा जो है एड सीए का जो प्रोसेस है पहले से थोड़ा डिफरेंस था। पहले ना तो हमको एक्सेप्टेंस देने की जरूरत थी, ना हमको सीए ऐड किया तब भी हमारी जरूरत थी। क्लाइंट के हम पोर्टल पे जाते थे और वहीं से हम ऐड सीए कर देते थे, हमको कहीं भी जो है चार्टेड अकाउंटेंट की एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं थी। अब एज ए ऑडिटर, एज ए चार्टेड अकाउंटेंट, एज ए फॉर्म असाइन, जितनी बार भी आप कहेंगे आपकी एक्सेप्टेंस रहेगी। बिना आप अपनी एक्सेप्टेंस दिए इस फॉर्म को आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब आता है कि नेक्स्ट स्टेप आता है, इसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि जो कंपनी है उसका डीएससी कैसे रजिस्टर करेंगे, डायरेक्टर का डीएससी कैसे रजिस्टर करेंगे और आपका किस तरीके से इंडिविजुअल का डीएससी कैसे रजिस्टर करेंगे। फाइलिंग के लिए डीएससी जरूरी है। तो मैं आपको एक डीएससी कैसे ऐड करना है, क्योंकि पहले बहुत सिंपल था, हम लॉगिन करते थे कंपनी का और पार्टनरशिप फर्म का। प्रोपराइटरशिप में आज भी दिक्कत नहीं है क्योंकि वहां पर आपका जो है बेस इंडिविजुअल का है, लेकिन कंपनी में पार्टनर और एलएलपी में आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड आपके कंपनी के अंदर आपके डायरेक्टर्स। तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर, एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म कंपनी के अंदर आपके डायरेक्टर्स। तो सबसे पहले आपको जो डायरेक्टर है उसको यहाँ पर आपको पहले प्रिंसिपल कॉन्टेक्ट हम सीधे डाल देते थे, अब हमको प्रिंसिपल कॉन्टेक्ट भी बनाना है और साथ में उसको ई वेरीफाई करने के लिए भी साइट पर जाके उसको अप्रूव करना है, उसको ऑथराइज करना है। जब तक हम नहीं करेंगे जब तक वो पार्टनर या डायरेक्टर जो है किसी भी तरीके का कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता है। तो कैसे करेंगे मैं आपको फिर अगेन एक
अब क्या होता है कि जब हम इंडिविजुअल का देखते हैं तो यहाँ प्रोफाइल में नजर आता है, तो यहाँ पे जब मैंने इनिशियली देखा तो कहीं समझ में नहीं आ रहा था कि भाई डायरेक्टर्स का जो कहाँ से जो है डीएससी रजिस्टर करें, बड़ा तकलीफ आ रही थी, कहीं भी देख लिया कहीं नजर नहीं आ रहा था। पहले बहुत इजी था डीएससी को, एक बार समझ जाएंगे तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपको क्या करना है, ये आपका की पर्सन की डिटेल पे जाना है, और जिस भी आपको डायरेक्टर को आप चाहते हैं कि भाई कि उसको ऑथराइज करें, तो जैसे मैं यहाँ पे इनको मैं ऑथराइज करूंगा, आपको अपना रेजिडेंशियल स्टेटस है, यदि रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट में विद पेन और विदाउट पेन दोनों फैसिलिटी आपको यहाँ पे डालनी है। इसके अलावा जैसे इनका डीएससी ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ रहा है, क्योंकि इनका कहीं रजिस्टर्ड किया हुआ है, आपको जो है उसका मोबाइल नंबर भी डालना है और ईमेल भी डालना है। ये दोनों मैंडेटरी है, जितने भी जो स्टार लगे हुए हैं ये सब मैंडेटरी है। यदि हम नहीं डालेंगे ये कंटिन्यू नहीं होगा, और इसके लिए पहले आपको ऑथराइज टू ई वेरीफाई और अपॉइंट एज ए प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीजें आपको डालना पड़ेगा। तो ये आपको डाल के और इसको आप सेव करेंगे। सेव, क्योंकि अभी इसमें मैंने मोबाइल और ईमेल नहीं डाला है तो ये आपको नहीं करेगा। मैं तो जैसे ही आप सेव करेंगे इसको आप सबमिट कर देंगे, सबमिट कर देंगे तो ये आपका ऑथराइज्ड टू ई वेरीफाई एंड ऑथराइज अपॉइंट एज ए प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट आपका हो जाएगा। तो जब तक आप इसको जो है डीएससी रजिस्टर करने से पहले सबसे पहले इसको करेंगे आप। अब आपको ये किसी भी केस में, यहाँ पर आपको कंपनी के केस में या आपके पार्टनरशिप के केस में कहीं पर भी आपको रजिस्टर्ड डीएससी नहीं आएगा। इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने उस डायरेक्टर का या उस पार्टनर का या डेजिग्नेटेड पार्टनर का लॉगिन करना पड़ेगा। अब एक इसमें कई बार प्रॉब्लम आती है कि आप हो सकता है किसी के सिर्फ कंपनी के ऑडिटर हो या किसी फर्म के ही ऑडिटर हो, इंडिविजुअल फाइलिंग आपके पास नहीं हो। उस सिचुएशन में या तो आपको अपने क्लाइंट से बात करके जो डायरेक्टर है उसका यूजर आईडी पासवर्ड लेना पड़ेगा, या पार्टनर है उनका यूजर आईडी पासवर्ड लेना पड़ेगा, या उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भाई आप इस डीएससी को वहां रजिस्टर करवा लें उनके इंडिविजुअल में। क्योंकि यदि इंडिविजुअल में उसको रजिस्टर नहीं करवाया तो आप अपनी किसी भी कंपनी का या फर्म का या पार्टनरशिप फर्म का जो है आप कोई भी फॉर्म फाइल नहीं कर सकते, कोई वेरीफाई नहीं कर सकते। अब उसके लिए आपको क्या, उसका क्या प्रोसेस है वो मैं भी आपको एक बार बताता हूं। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी जो है आपको पहले हमको जो सर्विसेज में इनमें हमारा रजिस्टर जो था हमारे डैशबोर्ड में नजर आ जाता था जब अर्लियर जो हमारा था, लेकिन अभी आपको यहाँ पे कहीं पे भी नजर नहीं आएगा। ये पेंडिंग एक्शन में नजर नहीं आएगा, ग्रीवेंसेज में नजर नहीं आएगा। आप जब जाएंगे, आप अपनी माई प्रोफाइल करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है ये रजिस्टर डीएससी का टैब नजर आएगा। अब यहाँ पे क्योंकि ये ऑलरेडी है तो ये आपको प्रोसेस नहीं है बताएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, क्लिक हियर टू। अब आपको यदि न्यू डीएससी करना है, मान लीजिए पुराना डीएससी रजिस्टर है तो ये आपको यदि करेंगे तो सबसे पहले जो आपका आएगा, आपको जो है उन्होंने क्वेश्चन पूछा है क्या आपने एम साइनर यूटिलिटी को डाउनलोड कर लिया है। तो ये यदि, क्योंकि इसका एम साइनर अलग है, एम साइनर अलग है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है आप इसका एम साइनर डाउनलोड कर दें। एम साइनर डाउनलोड करने के बाद में
आपको अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा और वहां पर फिर आपके उसके एमब्रिज करके ये आपका एम साइनर नजर आएगा। बाकी के जीएसटी में उसमें हमारा एम साइनर ही नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने दिया है एमब्रिज। तो अब यदि ये करते हैं, मान लीजिए मैंने जो है एम साइनर डाउनलोड कर रखा है, मैं जाऊंगा कंटिन्यू करूंगा, तो यहाँ पर आपका जो प्रोवाइडर है, जो आपने डीएससी लगा रखा है, वो आपका यहाँ पे नजर आ जाएगा, सर्टिफिकेट आपका नजर आ जाएगा, ये पास प्रोवाइडर का जो है आपका ऐड हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप करके, और अभी केस में क्या हो रहा है, जब हम पासवर्ड करते हैं, अभी नॉर्मली जो है हमारा जो पासवर्ड है हम वर्षों तक बदलते नहीं है। जैसे ही आपका पुराना पासवर्ड है, यहाँ पे मैसेज देता है कि पहले आप अपने टोकन का पासवर्ड बदलिए, तो पहले आप अपने टोकन का पासवर्ड चेंज कर लें और उसके बाद ही इस पे जाएं, तो यहाँ पर आपका ये सक्सेसफुली असाइन हो जाएगा और रजिस्टर हो जाएगा। ये एक तरीका है, ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है जहां पर हमको पहले नजर नहीं आता था, बहुत पहले इजी वे में। अच्छा, एक जो बेनिफिट हुआ है, पहले हमको कई बार जो है डिजिटल सिग्नेचर की फाइल बनानी पड़ती थी डीएससी यूटिलिटी से। अब हमको इस एम साइनर के थ्रू, जैसे हम उसके अंदर जीएसटी की साइट के अंदर आप सेलेक्ट करते हैं और वहीं पर डिजिटल सिग्नेचर लग जाता है, तो सेम प्रोसेस यहां पर है। तो ये इस तरीके से आता है। अब आता है, ये सब जब आप प्रोसेस कर लेंगे तो आप जो है फाइलिंग ऑफ फॉर्म आएगा कि हम किस तरीके से फॉर्म को फाइल करें, किस तरीके से हम फॉर्म को अपलोड करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब अपलोड, क्योंकि अभी भी जो है यूटिलिटी चेंज हो रही है, कई बार थोड़ी सी तकलीफ आ रही है। अर्लियर वर्जन में हमको एक्सएमएल फाइल अपलोड करनी होती थी, अभी हमको जेसन फाइल का युग आ गया है। एक्सएमएल फाइल टीसीएस का था, जेसन फाइल इन्फोसिस का है। जो जेसन फाइल है टैक्स ऑडिट की, यदि आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो आप उस सॉफ्टवेयर के थ्रू बना सकते हैं। अदरवाइज जो है डिपार्टमेंट ने आपको ऑफलाइन यूटिलिटी दी है, उस ऑफलाइन यूटिलिटी के तहत भी आप जो है उसको बना सकते हैं। यदि हम ऑफलाइन यूटिलिटी की बात करते हैं, तो जैसे मैं भी आपको एक अगेन एक प्रैक्टिकल बताता हूं कि किस तरीके से आप फाइल करेंगे। देखिए, इसके अंदर मैं ऑलरेडी सीए अपॉइंट कर चुका हूं और वहां से अप्रूवल हो गया है। अब आपको ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स फॉर्म में जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म। जैसे ही आएगा ये आपके आ जाएगा कि ये रिपोर्ट ऑफ ये आपकी करना है, कैसे करनी है। इसको आप चाहे इसको आप दबा देंगे। अब ये किसके पास में, अब कई बार क्या होता है, एक चीज और है, कई बार हमको गलत फॉर्म असाइन हो गया, नहीं करना था, या गलती से जो है इसमें 3CB कंपनी के केस में 3CB 3CD असाइन हो गया, या इंडिविजुअल के केस में आपका 3CA और 3CD असाइन हो गया, तो यू हैव राइट टू विड्रॉ। आप जो है यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं और नए फॉर्म फाइल का जो है आप कर सकते हैं। जैसे ही विड्रॉ करके आप नए फॉर्म का करेंगे, आपको अगेन जो है जो अपने ARCA का जो लॉगिन है उसके अंदर आप जाएंगे और वहां से उसको अप्रूवल लेना है। अब जैसे ही आप जो है फाइल न्यू फॉर्म में, अब यहां पर कैसे करना है, अटैचमेंट। अब आप विड्रॉ कर लेंगे। अब क्योंकि ARCA किसके पास पेंडिंग पड़ा है, सीए का, तो मैं अपने लॉगिन, मेरा अपना खुद का लॉगिन कर रहा हूं। कैसे जो है वहां से फाइल को अपडेट करेंगे। सर इसमें एक छोटा सा सवाल था
कि जैसे अपने को बार बार में एसएससी का लॉगिन करना पड़ रहा है और बार बार में कंसल्ट मतलब सीए का एआरसीए वाली आईडी करना पड़ रहा है, तो क्या ऐसा आपने ट्राई किया कि अपन दो अलग अलग ब्राउजर, जैसे किसी ने क्रोम और किसी पे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे या मोजिला पे यूज करते हुए अपन पैरेलली दोनों काम कर ले कि? कुलदीप जी, जैसे ही अपन दूसरा लॉगिन करते हैं ना, हाँ हाँ। कहता है कि भाई कि आपका एक जगह ऑलरेडी लॉगिन है, तो उसको बंद करो, तो मतलब आप वन टाइम पे एक बार ही लॉगिन होगा। नहीं सर, अपन तो एक एक तरफ तो एसएससी का कर लेंगे और एक तरफ अगर सीए का हाँ, करें। वो आप कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, उसमें हाँ कोई डाउट नहीं है। मैं केवल, क्योंकि क्या होता है, यदि मैं दोनों चीजें बताऊंगा बहुत तो फास्ट हो जाएगा, मेंबर को समझ में नहीं आएगी कि क्योंकि एक बार जब हमारे रिदम में आ जाएगा, या हम जब सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे तो सॉफ्टवेयर अपने आप ही करता है, जैसे रोबोट काम करता है, ऐसे सॉफ्टवेयर आपको एक बार वहां से करेगा, आपको लॉग आउट करेगा, लॉग इन करेगा, फिर ऐड करेगा। क्योंकि लेकिन प्रोसीजर यही है, आप चाहे दो पे कर लें, जैसे एक तरफ आपने दो खोल लिए, एक अपना खोल लिया, एक ब्राउजर, एक अपना एसएससी का खोल लिया, एसएससी का करें, अपने में आ जाए, उसको एक्सेप्ट कर लें, फिर जो करना है वो अपन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अपन एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत फास्ट हो जाएगा, मेंबर को समझ में कम आएगा, क्योंकि सारे हैं, तो मेंबर बाद में अपनी सहूलियत के हिसाब से दो ब्राउजर खोल के, तीन ब्राउजर खोल के कैसे भी उसमें काम कर सकता है। क्योंकि ये एक बार क्या है, जो अपॉइंट का उसका, उसके बाद में आ जाएगा, तो ये आप। सर, एक अभी बीच में क्वेरी है सर, इनका नाम तो क्लियर नहीं है, रेडमी, तो मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ हाँ अगर हाँ, इनकी कुछ क्वेरी थी इसी पॉइंट पे। जी भाई। यस, रेडमी करके जो यूजर है उन्होंने रेज हैंड किया हुआ है, कोई उनका कुछ क्वेश्चन हो तो। आई थिंक शायद वो भी नहीं कर पा रहे हैं कुछ। चलो कोई नहीं, जब कंटिन्यू आएंगे जब सर। देख लेंगे। तो क्या होता है कि अभी अब ऐसा लग रहा है, लेकिन एक बार जब हम काम करना चालू कर देंगे, तो ये, अब यहाँ पे जो पेंडिंग एक्शन में जाएंगे, यहाँ वर्क लिस्ट में जाएंगे, और इस वर्क लिस्ट में से आपको किसका जो है फॉर्म करना है, किसका हेलो फाइल करना है। हेलो। अब जैसे मान लीजिए, मैं ये फॉर्म है जो मैंने है यहाँ पे, पहले जो हमने एक्सेप्ट किया, उन्होंने जो है रिक्वेस्ट किया, आपने इस फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया, अब ये पेंडिंग फॉर फाइलिंग है, यहाँ से करके और फाइल फॉर्म, क्योंकि फाइल फॉर्म फाइल करना किसकी ड्यूटी है, एज ए मेंबर, एज ए ऑडिटर। ये केवल ऑफलाइन मोड ही है, आपको ऑनलाइन मोड नहीं मिलेगा। इसको एक कुलदीप जी वापस से, शायद इन्होंने रेडमी ने कुछ अभी है वो किया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसको आप कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए, यदि आपने जेसन फाइल बन, आपके पास में ये जेसन फाइल बनानी है, यदि आपने बना रखी है, यदि आपके पास सॉफ्टवेयर है, तो आप सॉफ्टवेयर से अपनी जेसन फाइल बना सकते हैं, और नहीं है तो आप ये ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक इसकी डाउनलोड करी थी, तो ऑफलाइन यूटिलिटी कैसे नजर आती है। ये शेयर हो रही है क्या, दिस वन फोल्डर शेयर हो रहा है कोई, कुलदीप जी? सर फोल्डर नहीं दिख रहा सर, ये ई फाइलिंग का ओके, वो दिख रही है सर। ठीक है। ये आपका, ये जैसे मैंने ऑफलाइन यूटिलिटी का ये वाला जो है अपना पूरा आया, इसको मैंने, ये ऑफलाइन यूटिलिटी है, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई बात नहीं, आप जो है डिपार्टमेंट ने आपको ऑफलाइन यूटिलिटी का ऑप्शन दिया है, आप ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू भी अपनी जेसन फाइल तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, ये आपका कोई सेटअप है, उसको पहले तैयार करेगा, उसके बाद में
ऑफलाइन यूटिलिटी भी थोड़ा सा स्लो वर्क करती है। ये आ गया इस तरीके की डेस्कटॉप यूटिलिटी फॉर्म। ये अभी वर्जन जो है आपके चेंज होते रहेंगे। अभी जो है 1.0.5 वर्जन है, हो सकता है 2 दिन बाद में चेंज हो जाए या और ऐड हो जाए। उसके बाद में आप क्या करेंगे, कंटिन्यू करें। अब आपको कौन सा फॉर्म के लिए जेसन फाइल तैयार करनी है, 3CA की करनी है या 3CD की करनी है। अब आपको 3CA की करनी है तो ये वाली ऑप्शन पे जाए, 3CD का करना है तो ये वाला ऑप्शन, 3CB का करना है तो ये वाला जाए। अब इसके अंदर भी आपके पास में 3-4 ऑप्शन दिए हैं। डाउनलोड प्री फिल्ड फॉर्म, ये नया ऑप्शन है। प्री फिल्ड फॉर्म में क्या होगा कि आपका जो एसएससी है, जिसका आप पेन नंबर वगैरह डालेंगे, तो उसका जो है नाम, पते, पेन नंबर, ये सब आपका आ जाएगा। और कंटिन्यू विद प्रीफिल, विदाउट प्रीफिल, यदि आपको लगता है कि नहीं हमारे पास में तभी कोई नहीं, हमको सारी चीज जाना है, तो ये सब कोई भी एक ऑप्शन आप जा सकते हैं और उसके बाद में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सर ये जो ऑफलाइन यूटिलिटी है वो कहाँ से शो करनी पड़ेगी अपने को? ये वाला जो अपनी ये स्क्रीन दिख रही है सर, स्क्रीन अभी फोल्डर वाली दिख रही है सर, आपको वो पोर्टल वाली चेंज करनी पड़ेगी स्क्रीन। स्टॉप शेयरिंग या फिर वो स्क्रीन न्यू शेयर तो सर स्क्रीन शेयर कर दो, आप जो भी करो तो ऑटोमेटिकली हाँ इस पे दिखा दो। ये जो है ना आपका ऑफलाइन यूटिलिटी का यहाँ पे वो दिया हुआ है। जैसे ही हम फॉर्म फाइल पे जाएंगे, है ना, आपको ऑफलाइन यूटिलिटी का ये दिया हुआ है, तो इसको आप डाउनलोड कर दें। और जो डाउनलोड हुआ वो हमने तो सर ये ऑफलाइन यूटिलिटी वाला ऑप्शन लॉगिन करने के बाद में ही होगा, ऐड सीए करने के बाद में? आपको लॉगिन, अभी आपको लॉगिन करने के बाद ही अवेलेबल है। हो सकता है अब 1-2 दिन में या कभी भी डिपार्टमेंट आपको बाहर भी दे दे, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल है आपको ये जब आप फाइल करेंगे वहीं पे आपको ऑप्शन दिया है। तो क्योंकि अब इसमें सबसे बड़ी चीज है कि आपको यहाँ दिया है, तो आप यहाँ पे जो है ना प्रीफिल्ड जेसन फाइल ये भी कर सकते हैं। जो वहां पे 3-4 ऑप्शन दिए थे ना, अब प्रीफिल्ड जेसन में क्या है, योर पेन बैंक अकाउंट विल बी प्रीफिल्ड इन द यूटिलिटी। आप अपनी जो जेसन फाइल प्री फिल्ड है वो ले सकते हैं एक बार। तो ये 2 आपके ऑप्शन है। तो आप ऑफलाइन यूटिलिटी पर जा सकते हैं, ऑफलाइन यूटिलिटी आप जाएंगे और उसके बाद में तो एज ऑफ नाउ ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले सीए ऐड करना पड़ेगा, सीए को एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस देने के बाद में फॉर्म की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी और सीए उस फॉर्म को एक्सेप्ट करेगा, फिर फॉर्म फाइल में जाएंगे, उसके बाद में ऑफलाइन यूटिलिटी का ऑप्शन आपको शो करेगा। वही नजर आएगा। जब तक आप फॉर्म का आप ऐड नहीं करेंगे, ये सारे प्रोसेस करने के बाद ही आपको ऑफलाइन यूटिलिटी अभी नजर आ रही है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द मेंबर्स शायद हो सकता है इसको अभी ट्राई कर रहे होंगे, जैसे पोर्टल पे जैसे पहले की तरह शो हो रहा होगा, तो शायद हो सकता है इसीलिए दिख रहा होगा कि यूटिलिटी नहीं दिख रही। तो बहुत सारे इश्यूज तो इनको लेके भी था, क्वेरीज थी कि सर ये यूटिलिटी शो नहीं हुई। बट डेफिनेटली आपने ये जो गाइड किया, डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द मेंबर्स। तो ये आपका जैसे ही आप करेंगे ऑफलाइन यूटिलिटी का, तो ये इस तरीके से जब हमारा ऑफलाइन यूटिलिटी है, यदि आप प्रीफिल्ड लेंगे इंपोर्ट, देखिए क्या, यदि आपका टू इंपोर्ट योर प्रीफिल्ड डेटा प्लीज प्रोवाइड बिलो। सर स्क्रीन चेंज, सर अभी पोर्टल स्क्रीन चल रही है। ये आपका जो है स्क्रीन आ गया। देखिए क्या है कि मेरा जो है वर्चुअल में पहला एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा सा क्योंकि ये शेयर स्क्रीन बार बार करने का, तो हो सकता है मेंबर्स को थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो रही हो, लेकिन आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। तो यहाँ पर क्योंकि ये देखिए, ये आप जब कहेंगे तो ये कह रहे हैं टू इंपोर्ट योर प्रीफिल्ड डेटा प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू प्रोसीड फर्दर। तो अब जब हमने इसमें कौन सा चूज किया था कि भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद भी आप यहाँ पे जो भी आप अपना पेन नंबर है ना, पेन नंबर डाल देंगे। उसके बाद में जो है आपका ये देखिए मैंडेटरी एरर, नीचे जाने से पहले आपका पेन नंबर जरूरी है। अब मान लीजिए असेसमेंट ईयर कौन सा है, आपने असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लिया। फाइलिंग टाइप ओरिजिनल,
ये सब करेंगे तो उसके बाद में आपको ये प्रोसीड के लिए बटन आ गया, डिटेल सेव्ड अर्लियर, है ना। तो इसमें मैंने क्योंकि करके चेक किया था भाई ऑफलाइन यूटिलिटी से कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आपको उन्होंने बताया कि भाई कि कैसे आपका ये करना है। मैं कह रहा, वो कह रहा है कि आपका ऑफलाइन यूटिलिटी पहले से, क्या भाई कंटिन्यू करना चाहते हैं? यस कर दीजिए। और ये आपका एक तरीके से वो ही वाला फॉर्म आ गया जो वहां पे नजर आ रहा था, लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये आपकी जो है आपके जो अगेन सारे सेक्शन वाइज आपको ये डिटेल देनी है। पहले 3CB के अंदर देना है तो भाई कैसे करना है, और उसके बाद में 3CD के सारे फॉर्म आपको यहाँ पे भरने हैं। तो इस तरीके से आप जब पूरा आप तैयार कर लेंगे तो एक जेसन फाइल आपकी तैयार हो जाएगी। मेरे हिसाब से मोस्टली जो है हमारे मेंबर्स अभी कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो वहां पे इजीली ये सारी चीज प्रोसेस हो जाती है। लेकिन नहीं भी कर रहे हैं तो चिंता की नहीं है कि हमको किसी सॉफ्टवेयर पे जाना नहीं है, और हम इस तरीके से सारी डिटेल भर के और जो है आपको जो है अपनी जेसन फाइल तैयार कर सकते हैं। वे क्या है आपका पैन नंबर, एड्रेस, जो हमारा 3CB का जो कंप्लीट डिटेल है वो इसके अंदर आ जाएगा। ये पूरा हमारा जैसे 3CB फॉर्म आ गया, आगे हमारे जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो हमारे ऑडिटर हैं होंगे फर्म के, उसकी डिटेल आ जाएगी। तो ये करने के बाद में आप सेव कर लेंगे ये प्लेस जो भी आप डालेंगे, और जो आपका डेट ऑफ साइनिंग, देखिए हो सकता है अपलोड इस फॉर्म को आप यहाँ कर रहे हो, चूज ए डेट, आपकी पुरानी टैक्स ऑडिट हो सकती है तो यहाँ पर आपकी जो साइनिंग डेट हो सकता है आपने अगस्त में ऑडिट करके रख दी हो सकता है आपने जो है आज हम अपलोड कर रहे हैं उससे पहले आपके, तो आपका उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे चूज ए डेट, कोई भी डेट आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है 3CB की डिटेल भरेंगे, ये नॉट कंप्लीट है। ऐसे ही जो है आप दूसरा भरेंगे, ये 3CD की जो है। अब देखिए जब तक आप 3CB नहीं भरेंगे पूरा, आपको 3CD के डिटेल पे नहीं लेके जाने देगा। तो यहाँ पे पहले आप सबसे पहले 3CB की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कंप्लीट करें। उसके बाद में आपको जो 3CB के जो हमारे जितने डेटा हैं, जितनी इंफॉर्मेशन है उसको आप कंप्लीट करेंगे, और आपकी तो उसके बाद में आपकी जेसन फाइल, यहाँ पे एक ऑप्शन आया है डाउनलोड जेसन फाइल, जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपनी जेसन फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम वापस से जो है उस फॉर्म पर आ गए हैं। ये आपका जो है मेंबर का सीए है, आपका लॉगिन है। जैसे हमारी जेसन फाइल तैयार हो जाती है हमको क्या करना है, सबसे पहले जो है आपकी जेसन फाइल अटैच करनी है। जेसन फाइल अटैच करनी है, जैसे मान लीजिए इस क्लाइंट की मैंने जेसन फाइल बनाई हुई है, ये आपका जो है ये स्क्रीन नजर आ रही है कुलदीप जी? यस सर। जो अपने जिस पे अपन ये जेसन फाइल मैंने बनाई हुई थी, जेसन फाइल अटैच हो गई है। उसके बाद में ये आपके अटैचमेंट है जो पहले भी हम करते थे, केवल जो एक चेंजेज है, पहले से पहले जो फाइल थी आपकी XML फाइल थी, और अब के बाद में ये आपकी ये फाइल है, ये जेसन फाइल है। केवल दो ही चेंजेज है, इसके अलावा कोई तीसरा चेंजेज इसमें नहीं है। इसके बाद में आप अपनी बैलेंस शीट अटैच कर दीजिए। मैं आपको बिल्कुल लाइव करके बता रहा हूं। ये आपकी बैलेंस शीट अटैच हो गई। आप जो है अपना P&L अटैच कर दें।
और मैं जो करता हूं और सभी मेंबर्स को रिकमेंड करता हूं, क्योंकि अभी ये नई एरा है, तो जो आपने टैक्स ऑडिट फाइल भरी है, जो आपने एक्चुअल में टैक्स ऑडिट साइन करी है, उसको इस अदर्स में अटैच कर दें, क्योंकि हो सकता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो जो आपका साइंड डॉक्यूमेंट है वो ही सबसे वैलिड एंड डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर इस अदर्स के अंदर जो है आप अपनी टैक्स ऑडिट की जो रिपोर्ट है, टैक्स जो 3C है, 3CB है या 3CD है, उसको आप अटैचमेंट कर दें। इंपॉर्टेंट क्या है, ये टोटल जो साइज है ये आपकी 50 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इंडिविजुअल की जो साइज है वो 5 MB की है। हालांकि इसमें लिखा नहीं, लेकिन जैसे ही आप 5 MB से बड़ी साइज को आप अटैच करते हैं, एरर का मैसेज आप दे देता है। अगेन जैसे आपका अटैचमेंट का भी, क्योंकि पूरा टैक्स ऑडिट फॉर्म है 25-30 पन्ने का, तो ये आपका टाइम लगा रहा है। सर आई थिंक इस मीटिंग में जितने भी लोग अटेंड कर रहे होंगे, नो वन एक्सपेक्टिंग कि आप ये सिखाते हुए भी आप अपना ऑफिस के एक फाइल पे वर्किंग कंप्लीट कर लेंगे सर, ऑडिट कंप्लीट करके घर जाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो समय का पूर्ण सदुपयोग मैं देख पा रहा हूँ सर आप जो कर रहे हैं। देखिए ये फाइल आपका बैलेंस शीट अटैच हो गया, ये P&L अटैच हो गया, और ये यहां पर मैंने अटैच कर दिया। सिंपल सबमिट। अब देखिए अभी जो एक ये बड़ा आ गया, अभी क्या हुआ कि यूडिन की अपडेशन फैसिलिटी चालू नहीं करी है। आपने यूडिन अपडेट कर लिया, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं कि आपको यूडिन अभी आगे बढ़ने ही नहीं देगा। वो कह रहे हैं कि भैया कि अभी यूडिन की जो फैसिलिटी है वो नहीं है। यदि आप आज की तारीख में इसको फाइल करना चाहते हैं तो आपको लिखेंगे आई डू नॉट हैव यूडिन ऑब्लिक आई विल अपडेट यूडिन लेटर। सरकार यहां पर अपनी गलती नहीं मान रही है। गलती किसकी? मेंबर की। उससे प्रजा कहना चाह रही है कि भैया कि मेरे पास में यूडिन नहीं है, मैं बाद में बना दूंगा। ठीक है, यदि मैं मेरे पास उसमें यूडिन है, लेकिन आपको यहाँ पर यूडिन नहीं डालने देता, क्योंकि नीचे क्या लिख रखा है, यूडिन फैसिलिटी इज येट टू एनेबल्ड, प्लीज सेलेक्ट ऑप्शन टू अपडेट यूडिन लेटर एंड प्रोसीड ई वेरिफिकेशन, यू कैन अपडेट यूडिन थ्रू अपडेट यूडिन फंक्शनली लेटर। सरकार ने ये कर दिया, लेकिन आपसे तो यही करवाएंगे तो ही आपको आगे बढ़ने देंगे। मैंने इस पर टिक कर दिया। यदि जैसे ये फंक्शनली आ जाएगा तो मेरा यहाँ पे यूडिन आ जाएगा और यूडिन मेरा वेरिफिकेशन करना होगा। अब आपको जो अभी जब तक ये यूडिन का अपडेट का फंक्शनली जो है चालू नहीं हो, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जो टैक्स ऑडिट आपने फाइल कर दी है उनका आप बाद में यूडिन अपडेट कर दें इनकम टैक्स की साइट पे, क्योंकि इनकम टैक्स की साइट पे यदि हम यूडिन अपडेट करना भूल गए तो आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो आप इसको ध्यान रखें मेंबर, ये ये करके और इसको आप प्रोसीड कर देंगे। अब जो नंबर आ जाएगा तो ये आपका देखिए क्या कह रहा है। जब नंबर आ जाएगा, आई एग्री दैट यूडिन वंस लिंक्ड विद द फॉर्म कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर एक्सेप्टेंस बाय द टैक्स पेयर, काइंडली एंश्योर दैट एंटर्ड यूडिन फॉर दिस फॉर्म इज एग्जैक्टली एज जनरेट फ्रॉम द ICI पोर्टल। तो अभी है नहीं, बाद में फंक्शनली जब आएगा तो कर देंगे। अब ये देखिए, केवल आप DSC से ही इसको वेरीफाई कर सकते हैं, आधार OTP से वेरीफाई करने का नहीं है। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं कंटिन्यू करता हूं। अगेन यहाँ पे अब कैसे DSC लगेगा वो प्रैक्टिकली आपके सामने नजर आएगा। मैंने इसको टिक कर दिया, आई हैव डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल एमसाइनर यूटिलिटी, कंटिन्यू। ये आपकी विंडो नजर आ जाएगी। थोड़ा सा इंतजार करें, इनिशियली नहीं आएगा, कई बार तकलीफ देता है। ये देखिए अब ये मेरा मान लीजिए ई पास का है, ये आ गया। यहाँ पे जो मेरा पासवर्ड है और अभी थोड़ा सा
ये आया। अब आएगा ई वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुल, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द फॉर्म 3CA/CD? यस। और दोस्तों ये आपके सामने प्रैक्टिकली ये फॉर्म टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपकी फाइल हो गई है, मेंबर की तरफ से ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल हो गई है। इसको आप जो है गो टू और करने के बाद में आप यहां से लॉग आउट कर सकते हैं। एनी क्वेरी टू एनी मेंबर इन रिगार्ड द फाइलिंग ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट? अगर किसी मेंबर को कोई क्वेरी हो ड्यूरिंग कि ये क्या प्रोसेस होना है, कोई स्टेप का वेरिफिकेशन करना है, तो आप रेज हैंड ऑप्शन यूज कर सकते हैं, तो हम उनको अनम्यूट करके वो अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। विष्णु शर्मा जी, यस विष्णु शर्मा जी आपको अनम्यूट किया है, आप कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। हाँ सर, मैं पूछा था कि सर अपने जो तीसरा अटैचमेंट जो अटैच किया है फॉर्म 3CB और 3CD वाला, वो पूरी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अटैच किए या फिर कोई पर्टिकुलर अपनी ओपिनियन वगैरह अटैच किए? नहीं विष्णु जी, अपन ने उसमें पूरा टैक्स ऑडिट का जो फॉर्म है जो अपन ने साइन किया है उसको ही अटैच किया है, क्योंकि अभी नई यूटिलिटी है, मालूम नहीं है कहाँ पे कैसे वर्क करेगी, किस तरीके से उसका इफेक्ट आएगा। तो जो मेरी साइंड है वो ऑथेंटिकेट जो मेरी ऑडिट रिपोर्ट मैंने इश्यू करी है उसको मैंने उसमें अटैच कर दिया है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू सतपाल सिंह अरोड़ा जी। थैंक्स फॉर दिस, दिस इज रियली हेल्पफुल। मेरे को एक चीज पता करना था, कैन आई गेट ए वीडियो ऑफ दिस? After completing this session, this video will be uploaded on ICAI Jaipur YouTube channel. Member can also view this session later on as per their convenience. Okay, it will be helpful if you can give the link in the chat. Yes, now I am sharing the YouTube channel name. Okay. Okay. Thank you. Anyone else? और कोई मेंबर अगर कोई क्वेरी है? सतपाल सर की दोबारा आई थिंक। यस सर। हाँ कुलदीप जी। ठीक है सर। हाँ सर, एक क्वेरी थी बीच में चैट बॉक्स में एक आई है कि ITR 6 फाइल हो रहा है क्या? यस हो रहा है। यस, तो ये इंतखाब जी का एक ये क्वेरी थी कि ITR 6 फाइल हो रहा है क्या? तो सर इसके रिगार्डिंग ओके सर, इसको कहाँ से कोई यूटिलिटी को स्पेसिफिक जैसे ऑफलाइन यूटिलिटी के लिए इतनी प्रोसेसेस फॉलो करने के बाद में वो शो हो रही थी, तो क्या इसके लिए भी ऐसा है कुछ स्पेशल कुछ ऐसा है? आप जैसे जाएंगे और फाइल फॉर्म जब आपका, जैसे अभी मैं आपको, क्योंकि मैं अभी रिटर्न तो फाइल नहीं करूंगा है ना, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस इसके आगे का, अब कैसे आपको मेंबर को, जैसे हमने ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर दी, ये अगेन क्लाइंट के उसमें चली गई है, वहां से क्लाइंट का अप्रूवल होगा जैसे हम पहले करते आए थे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी मेंबर से, जो इसका जो आपकी यूटिलिटी से जो 3CD बन रही है उसको आप चेक कर लें। अभी क्या है कि कई बार जो आप यूटिलिटी से या आपके सॉफ्टवेयर से जो अपलोड कर रहे हैं तो कई बार जो डेटा मिसमैच जा रहा है, तो बिफोर एक्सेप्टेंस प्लीज चेक, क्योंकि यदि आपने चेक नहीं किया और एक्सेप्ट कर दिया तो फिर आपको वो प्रॉब्लम होगा, आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। तो आप एक बार वहां पर, जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, ये रवि गुप्ता और हेमंत गुप्ता जी भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। कुलदीप जी। हाँ यस, फर्स्ट रवि गुप्ता जी। हेलो। हाँ सर। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है रवि जी। Sir, when we file the audit report, after filing, the report is filed through software. Earlier, when we used to file the report through software, on site we can see what our documents has been filed. We can view those documents. Now, what happens when we submit the report there, we cannot view those documents. तो क्या हम डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं या वो नहीं दे सकते, यानी सबमिट हो रहे हैं सॉफ्टवेयर से तो उसमें वो दिखते नहीं, यानी वहां पे हम उसको व्यू नहीं कर सकते वापस क्लिक करके? नहीं, अभी जब आप क्लाइंट के जो लॉगिन करेंगे ना सर, तो वहां पर आप देखेंगे तो आपको जो भी अटैचमेंट आपने लगाया है और जो भी आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करी है वो आपको वहां नजर आ जाएगी।
नहीं वो सर आफ्टर सबमिशन है, ड्यूरिंग सबमिशन यानी क्या होता था कि सॉफ्टवेयर से वहां चला गया। हाँ, आपने साइन यदि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे तो वो केवल जा रहा है, वो आपको नजर नहीं आ रहा, वो नहीं हाँ आ रहा। वो अभी या तो सॉफ्टवेयर वाले इस चीज को दें कि भाई वो एक व्यू का पावर है, तो ये सब सीखने सिखाने का दौर है सॉफ्टवेयर वालों के लिए भी और अपने लिए भी। earlier when after यस submission यस, during the course of एग्री। submission we can see that whether balance sheet or report has been any the report which we are filing the same can be viewed during submission only. नहीं नहीं, वो पहले नजर आती थी, लेकिन अभी सॉफ्टवेयर के थ्रू अपन फाइल कर रहे हैं, तो उसमें आपका बस वो घूमता है, अटैच हो जाता है, सबमिट हो जाता है, आपको नहीं पता चलता Yes sir, कि yes क्या sir. अटैचमेंट। ऐसा मेरे साथ हुआ, मैंने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू लगाई थी, लेकिन जब फाइनली वहां पे देखा तो वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पहुंची ही नहीं, केवल बैलेंस शीट और P&L का ही अटैचमेंट गया। तो वहां पर यदि ऐसा लगता है तो वहां जाके देख लें, क्लाइंट के उसमें जाके एसएससी के में जाके, और यदि नहीं है तो एक बार वहां से रिजेक्ट करके और दोबारा से अपलोड कर लें। दैट्स द वे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर नेक्स्ट हेमंत गुप्ता जी। हेलो हाँ हेमंत जी, आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं सर। सर, एक चीज बताएं, जैसे मान लो यूडिन नंबर अभी अपलोड नहीं हो रहा है तो बाद में इसके लिए कोई फंक्शन आएगा, उसमें ऑप्शन आएगा? बिल्कुल हेमंत जी, कैसे हैं आप, पहले तो बताइए। बस बढ़िया है, बढ़िया है। चलिए हेमंत जी, इसमें एक अपडेट यूडिन का एक फंक्शन है जो बाद में ये अपडेट करेंगे, अच्छा जी है सर। ना। जैसे ही वो फंक्शनली चालू हो जाएगा, आप अपना जो यूडिन है उसको जी ऊपर जी डालें और उसको अपडेट कर दें। ये बाद में अभी इन्होंने एनेबल नहीं किया, जैसे ही आपको एनेबल होगा वैसे ही आप जो है उसके अंदर अपना यूडिन अपडेट कर सकते हैं। उसमें क्लाइंट लिस्ट आएगी सर जिसमें यूडिन नहीं होगा? देखिए, अपन इनके भरोसे नहीं रहे, अपना हम्म। डेटा खुद तैयार रखें तो ज्यादा बेटर है। जी 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 उसमें ठीक है। आप जो है अपना यूडिन का जो है एक लिस्ट बना लें, क्योंकि अभी जितनी फाइल हो रही है 100% यूडिन अपलोड नहीं हो रहा है, तो जी जी सबको कोई आप अपनी लिस्ट बना लें। बाद में जैसे ही यूडिन का जो टैब है वो फंक्शनल होगा, वैसे जी ही जी हम जो है सब पे अपना जो यूडिन है वो डाल दें। जी सर, जी सर। मीनवाइल इट इज रिक्वेस्टेड टू ऑल द मेंबर्स कि जो अभी जैसे यूडिन वाली जो फंक्शनैलिटी थी अभी तक एनेबल नहीं हुई है, तो उसके लिए आप अपना मैनुअल रिकॉर्ड आप अपने अपने लेवल पे भी आप बना के रखें, और जैसे ही वो फंक्शनैलिटी वर्किंग में आ जाए तो आप उसको अपडेट करें। सिस्टम में आगे क्या होगा वो शायद हम उस इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हम उस पर कमेंट करने की कैपेसिटी में नहीं है। एक और क्वेरी थी एक मेंबर की कि इन हाउ मेनी डेज वी हैव टू अपडेट यूडिन। तो सर ये तो एज एंड व्हेन द फंक्शनैलिटी enabled by the portal you have to update this UDIN। उसमें कुलदीप जी अपने को कोई न कोई समय देंगे, ऐसा नहीं कर सकते आज कर दी जो पुरानी जैसे अपन लास्ट ईयर की देखें तो 17 नवंबर से पहले की जितनी ऑडिट थी उसके लिए हमको समय दिया गया था कि भाई कि 17 नवंबर से पहले जितने भी आपने टार अपलोड कर दी उनका आप यूडिन अपडेट कर दें। उसके लिए हमको समय दिया था 30 दिसंबर तक का। ऐसे ही मैं सोचता हूं कि जब हमारा यूडिन की जो फंक्शनलिटी इस पे चालू हो जाएगा, फंक्शनली चालू हो जाएगा, आपको एक टाइम लिमिट जाएगी, उस टाइम लिमिट के अंदर आपको अपने यूडिन अपलोड करने पड़ेंगे। ओके एक महेश कुमार गोयल जी का बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, मैं उनको अभी अनम्यूट करता हूँ। क्वेश्चन तो जो इनका जो आया था वो बड़ा टेक्निकल था कि when total file size is 50 MB then why individual file is kept at 5 MB since there are only there are only 4 type of files। तो ये तो 20 MB होनी चाहिए, तो या तो 50 है या सिस्टम का बग है, क्या चीज है वो एक चीज है। इसके अलावा अभी सर सर अगर समझ में नहीं आ रहा है ना। हो सकता है कि ये ओवरऑल जो 5 की है, क्योंकि देखिए सर रोज अपडेट हो रहा है। अभी मैंने 3 दिन पहले किया तो मुझे 5 MB पे रोक दिया था। मैं तो प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, हो सकता है आज करें तो आज नहीं रोके, है ना। ओके। क्योंकि पहले वहां पे 5 MB की साइज बता रहा था, अभी जो मैंने बताया ना कि वो इंडिविजुअली नहीं नजर आ रही है, तो हो सकता है वो हटा दी हो। जब आप अपन प्रैक्टिकल करके देखेंगे सर, फिर सीखेंगे सिखाएंगे, और नई चीज जो होगी उनको फिर अगेन वी विल लर्न, एंड यदि होगा तो फिर एक बार फिर मिलेंगे। ओके सर कंटिन्यू योर सेशन। तो अब आता है कि जो अपन नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। मैं आपको जो कह रहा था कि भाई आपको क्या करना है, तो फिर अगेन जैसे अब पहले हम जैसे करते थे वैसे ही हम करेंगे, कोई इसमें नया कुछ नहीं है। पर जो मैं कहूंगा
देखिए अब ये इनकी मैंने जो है आपकी टार अपलोड कर दी थी, तो यहाँ पे इनके पेंडिंग एक्शन में नजर आ रहा है, ये पेंडिंग एक्शन है। इस आप वर्क लिस्ट में जाएंगे, वर्क लिस्ट में आपको जो काम है, जो आपका एक फॉर्म है, वो ये नजर आ जाएगा। अब इसको आपको एक्सेप्टेड करना है, ये क्या करना है। अब देखिए मैं जो आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, देखिए जो डाउनलोड अटैचमेंट है, देखिए हमने वहां से अटैचमेंट किए थे साइट से ही, यहां से हमने साइट से अटैचमेंट किए थे, लेकिन नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी केस में हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। जबकि ये हमने ऑनलाइन अटैचमेंट किया, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू अटैचमेंट नहीं किए थे, लेकिन एक भी अटैचमेंट नजर नहीं आ रहा। हो सकता है ये कल तक नजर आ जाए, हो सकता है 2 घंटे में नजर आ जाए, हो सकता है नजर नहीं आए। तो बिफोर एक्सेप्टेंस प्लीज वेट। इनिशियली आप नहीं करें कि अभी आपने फॉर्म अपलोड किया, अभी आप एक्सेप्ट कर दिए, वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। एक चीज जरूर देख लें, आपका जो फॉर्म है ये व्यू फॉर्म करके है, इस फॉर्म को आप व्यू कर लें। अभी ये शायद नहीं हो रहा है साइट में, फिर कोई दिक्कत है तो इस फॉर्म को जब आप व्यू करेंगे तो आपने जो फॉर्म 3CD भरा है वो कंप्लीट आपको नजर आ जाएगा। आप अपने इंटर्न के साथ में या कोई स्टाफ को लगा दें, ये जैसे ये आ गया। ये कोई एरर आ रही है तो इसमें अंदर आपको तो उसके अंदर आप जो है एक्सेप्ट करने से पहले ये देख लें कि भाई अटैचमेंट आपके डाउनलोड आ गए। ये देखिए, अब देखिए थोड़ी देर में आ गए। ये इनकम टैक्स की साइट है, थोड़ा सा पैनिक नहीं रहे, बी पेशेंस। हमको बहुत ही धैर्य रखने की जरूरत है, शांति से काम करने की जरूरत है। तो आप अपनी जो भी अटैचमेंट है आप उनको यहाँ पे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि वही है जो आपने किए हैं। ये देखिए ये सब आपके आ गया। और उसके बाद में आपका जो है व्यू फॉर्म आप करें, व्यू फॉर्म करके आप अपने इंटर्न को, स्टाफ को चेक करके लगा दें और उनसे देखवा लें कि क्या ये वही फॉर्म है, ये वही डिटेल है जो आपने एग्जैक्टली फॉर्म 3CD के अंदर फाइल करी थी। प्लीज एंश्योर इट, क्योंकि अभी इसमें इनिशियली लेवल पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कई बार आपने, जैसे मेरे साथ ही एक हुआ था कि आई हैव नॉट फाइल्ड एनी डिटेल रिगार्डिंग पेमेंट मोर देन ₹10,000, लेकिन इसमें कहां से आ गया मालूम नहीं, उसको रिजेक्ट किया, उसको दोबारा से फाइल किया। तो इसको आप एंश्योर कर लें कि भाई कि इसको एक्सेप्ट करने से पहले, क्योंकि एक बार आपकी एक्सेप्ट हो गई तो उसके बाद में आपके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। क्योंकि मैंने अभी ये चेक नहीं कराई, इसलिए मैं इसको एक्सेप्टेंस नहीं करूंगा। एक्सेप्ट करेंगे, इसके अंदर जिस डायरेक्टर को या जिस पार्टनर को आपने ऑथराइज बनाया है उसका वहां पे आएगा, आप डिजिटल लगाएंगे और उसका एक्सेप्टेंस हो जाएगा और इस तरीके से आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल हो जाएगी। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है आपका 3CD 3CB फाइल करने का। सर इसमें एक क्वेरी थी, जैसे अभी आपने बताया कि हमने अटैचमेंट को व्यू नहीं हो रहा था, फिर बाद में वो शो हो गया, बट गलती से हो सकता है कि हमसे एक्सेप्ट कर लें हम, तो क्या वो एक्सेप्ट करने के बाद में, अप्रूव होने के बाद में, क्या वो रिवाइज टैक्स ऑडिट वाला ऑप्शन क्या हमारे लिए अवेलेबल होगा? कुलदीप जी, अभी जो रिवाइज वाला इन्होंने दिया है बहुत लिमिटेड यूज के लिए दिया है। ओके, है ना, कि केवल जो है आप लिमिटेड यूज के लिए दिया है कि आप केवल पर्टिकुलर 43B के लिए आपका दिया है। हो सकता है कि आगे से इसके लिए भी दे दें, क्योंकि अभी अपन कुछ कह नहीं सकते। लेकिन पहले, यदि मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा सभी मेंबर से कि पहले वो चेक करें। टाइम आपका 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, और ऐसा नहीं है कि, क्योंकि इस सारे प्रोसेस में अभी देखिए 10 मिनट बाद में आया, कई बार आपको ये अटैचमेंट 3 घंटे बाद नजर आते हैं, कई बार अगले दिन नजर आते हैं। तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको बहुत सिंपली
वेट करना है, कोई बात नहीं, कल देखेंगे। कल आप देखें, उसको चेक करें, उसके बाद ही अप्रूव करें। थोड़ा सा हमको इस चीज को क्वेश्चन रखना है। तो ये हो गया हमारा टैक्स ऑडिट का फाइलिंग। दूसरा एक फॉर्म आता है जो टैक्स ऑडिट का, ये तो हमारा हो गया 3CA 3CB। दूसरा जो आता है वो होता है 10B। 10B के लिए जो हमारे ट्रस्ट हैं, उन ट्रस्टों का कोई भी आपका 10 है, उसका आप ले लें। तो आपको जो ट्रस्ट है, अभी उसके लिए आपको ऑफलाइन यूटिलिटी नहीं है। आपको जो ट्रस्ट का जो 10B फाइल करना है वो केवल और केवल ऑनलाइन मोड के अंदर है। उसके अंदर आपका यूडिन जा रहा है। अब उसमें एक प्रॉब्लम है जो अभी है, आपने मान लीजिए अक्टूबर में, दिसंबर में कभी भी जो है टैक्स फॉर्म 10B इशू कर दिया ट्रस्ट की ऑडिट के लिए, और आज आप भरते हैं तो आपको वो डेट रिवाइज करने को नहीं दे रहा है। जैसे आपका 3CA 3CD में आपको डेट दे रहा है, लेकिन उसके अंदर आपको, और एक जो नई चीज उसमें डाली है वो है आपका 10B। मैं अभी आपको जल्दी एक दिखाता हूं कि किस तरीके से हम, देखिए जो अपॉइंटमेंट करना है वो हमने आपको बता दिया था। ऑथराइज पार्टनर, चार्टेड अकाउंटेंट का जो टैब है उसके थ्रू हम जो है 10B के जो लिए हम असाइन कर सकते हैं। वहां पे हमको 3CA 3CB वाले प्रोसेस में नहीं जाना। मैं अभी जैसे किसी एक ट्रस्ट का अभी खोलता हूं, स्क्रीन शेयर कर दी क्या? कुलदीप जी नजर आ रही है? नहीं सर, अभी तक आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई। ओके। ये देखिए मैंने एक ट्रस्ट का लॉगिन कर लिया है, ठीक है। अब ट्रस्ट का लॉगिन करना है तो अब कैसे आपको उसके अंदर जाएंगे, क्योंकि 10B मेंबर का भरेंगे। यहाँ पर जो आपका मैंने बताया था ऑथराइज पार्टनर के थ्रू, चार्टेड अकाउंटेंट, और चार्टेड अकाउंटेंट के लिए आपको जो है, आपको जो फॉर्म है वो आपको यहीं से असाइन करने हैं। ये असाइन फॉर्म, एड फॉर्म, आपका कौन सा फॉर्म है, मान लीजिए 10B, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, ओरिजिनल है, और ये आपने यहां से ऐड कर दिया। आपको इसके अंदर वहां नहीं जाना जो हमने पहले था, यहाँ पे ऑथराइज पार्टनर के थ्रू में ही यहाँ से माई चार्टेड अकाउंटेंट से सीधा आपका ऐड हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ये 10B आपका होगा। अब इसके लिए मैं उसके बाद में आपको, क्योंकि ऑफलाइन यूटिलिटी नहीं है, आप एक्सेप्टेंस करेंगे, और 10B का जो फॉर्म है वो सब आपको यहाँ पे ऑनलाइन ही भरना होगा। ऑफलाइन अभी नहीं आया, हो सकता है टाइम के बाद में कुछ ऑनलाइन आपका आ जाए। देखिए यहाँ पे अगेन आप पेंडिंग एक्शन में जाएंगे, अभी वो शो नहीं हो रहा है, हो सकता है कुछ टाइम बाद हो। तो जब जैसे मान लीजिए अभी ये है, ये भी एक ट्रस्ट का है, वहां से जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो कैसे आप फाइल करेंगे, तो यहाँ पर आप ये फाइल फॉर्म पे जाएंगे, एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद आप फाइल फॉर्म पे जाएंगे। ये आपका जो सबमिशन मोड है वो ऑनलाइन है, यहाँ पर ऑफलाइन नहीं है। तो अभी एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, हो सकता है जल्दी आपका ऑफलाइन, इसलिए सॉफ्टवेयर के थ्रू अभी ये भरने में प्रॉब्लम आ रही है। इसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं जाएगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है अभी इसको कंटिन्यू यही करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये आपकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे भरनी है। आपका ये जो आपका आ गया कि भाई आपका चैरिटेबल इनकम में क्या यूज किया, जो पूरा जो फॉर्म 10B है वो पूरा पूरा यहाँ पे आपको ऑनलाइन भरना है। और
साथ में जो इस बार पहले नहीं था कभी, जो हम पिछली बार भी जो आप लोगों ने ट्रस्ट की और चैरिटेबल ट्रस्ट की ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करी थी, तो वहां पे किसी प्रकार के अटैचमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन दिस टाइम यस, दे प्रोवाइडेड you have to attach the balance sheet, the income and expenditure account and the any relevant document। या अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आपका जो फॉर्म 10B है वो कंप्लीट फॉर्म को यहाँ पे अटैच कर दें। तो उसके बाद में ये आपका सेम प्रोसेस रहेगा, आप फाइल कर देंगे, डिजिटल सिग्नेचर से इसको अपलोड कर देंगे और आपके जो है मेंबर जो क्लाइंट है उसके यहाँ पे शो हो जाएगा। वहां पे फिर एक बार चेक कर लें, चाहे आपने इवन इफ ऑनलाइन भरा है, लेकिन वहां पे अप्रूव करने से पहले बी एंश्योर दैट द डेटा इज करेक्ट, क्योंकि हम अभी सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा इंश्योर नहीं है। तो दिस इज अबाउट 10B जो ट्रस्ट की ऑडिट के लिए है। अगेन हम बात करें एक और जो हमारी एज ए मेंबर जो जाती है आपकी मेट की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, जो हमारी जो हम भरते हैं उसमें आएगा आपका 29B 115 GB की मेट की। तो अगेन वहां से जो हमारा ऑथराइज पार्टनर है वहां से हम जो है उसको ऐड करेंगे और उस तरीके से हम उसको फिलअप करेंगे। सेम प्रोसेस है, एक बार जो आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 29B अगेन अभी भी जो है ऑनलाइन मोड में है ना, ऑफलाइन मोड उसका नहीं चालू हुआ है, हो सकता है चालू हो जाए। तो ये सब चीजें हैं। अब आती है कि ये सब हमारा फाइलिंग का हो गया। फाइलिंग के टाइम पे कुछ चीजें मैं और आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि वैसे तो आप सभी लोग बहुत सालों से टैक्स ऑडिट कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें जो अभी अपने पास समय है थोड़ा सा हम अपन यूज कर सकते हैं। एक तो जो करीब 4 या 5 क्लॉज में 3CD के में कुछ चेंजेज आए हैं, तो उस चेंजेज को अपन देख सकते हैं। और एक जो हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं तो कुछ कॉमन एरर होती है, तो उस पर हम बात कर सकते हैं। यदि कुलदीप जी आप अनुमति दें तो उन पर बात कर लें थोड़ा। कुलदीप जी चलिए, देखिए अभी मैं आपको बताता हूं, केवल 5 क्लॉज में इस बार जो है अप्रैल के अंदर सरकार ने 3CD फॉर्म जो हमको शेयर किया, नया 3CD फॉर्म जो है हमको दिया, उसमें केवल 5 क्लॉज में चेंज है। मोस्टली वो चेंजेस 115 BAC और BAD जो लास्ट ईयर जो आए थे हमको 115 BBA और 115 BAB जो आपका उसका जो रेट का था। तो इस बार आपका जो है इंडिविजुअल HUF और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए आपको दिया है 115 BAC इंडिविजुअल और HUF के लिए है, तो वो आपको ऐड किया है। तो मैं आपको बताता हूं कि क्या केवल 5 हैं, मुश्किल से हार्डली इट विल टेक टाइम, लेकिन इसको भरते टाइम आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखें। ये आपका जो क्लॉज है, देखिए ये अपने जो है केवल क्लॉज 8A पार्ट A और 3CD, इसके अंदर जो है आपका एक चेंजेज आया है। चेंजेज केवल क्या है, पहले जो है हमारा 100 जो इस साल नया 115 BAC और BAD ये ऐड कर दिया है। इसके अलावा कुछ भी चेंजेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेदर द असेसी ऑप्टेड फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 BA BAA और 115 BAB ये अर्लियर यहाँ तक का था। इस बार ये केवल यदि इंडिविजुअल HUF ने 115 BAC ऑप्ट किया है तो इसमें आपको यस करके और वो सेक्शन आपको डालना है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी ने यदि आपको 115 BAD को ऑप्ट किया है तो उसका आपको चेंजेज करना है। केवल एक ये इस क्लॉज के अंदर चेंज है। दूसरा जो आपका चेंज है वो है क्लॉज 17। क्लॉज 17 में आपका अर्लियर ये वाला क्लॉज था जहां पे आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं और उसकी जो स्टाम्प की वैल्यू है जो सेक्शन 43CA फॉर इन्वेंट्री एंड सेक्शन 50C इन्वेस्टमेंट के लिए जो था उसके वैल्यूएशन से लेके था
तो इस बार आपका एक नया क्लॉज ये आपका जो ऐड किया है ये वाला कि वेदर द प्रोविजन ऑफ सेकंड प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 43C(a) और फोर्थ प्रोविजो टू क्लॉज 10th ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 56 एप्लीकेबल। यहाँ पे पहले केवल आपसे वैल्यू अडॉप्टेड और असेसेबल, असेस्ड और असेसेबल तक ही पूछता था। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, यहाँ से मांगा गया है कि भैया कि आपके ऊपर जो है 43CA 56(2) एप्लीकेबल है क्या? यस करेंगे तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा ये आपसे पूछा गया है। क्लॉज 18 में अगेन, क्योंकि एक ये आपके जो है क्लॉज 18 के अंदर 3 जो अमेंडमेंट डाले हैं वो अगेन 115 BAC और BAD जो हमारा डेप्रिसिएशन है, यदि हम आप जानते हैं कि 115 BAC और BAD यदि हम ले रहे हैं तो आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन वगैरह आपको नहीं मिलेगा। इसी तरीके से जो गुडविल का उसका कोई आपने इंटेंजिबल का एडजस्टमेंट किया है वो नहीं मिलेगा, उसका आपको एडिशन इसमें डाला है। ऐसे 32 लॉसेज के अंदर अगेन एक लास्ट ईयर ये डाल दिया था ये वाला क्लॉज 115 BAA का, उसकी जगह क्योंकि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए एप्लीकेबल था और इस साल 115 BAA, BAC और BAD ये आपके चारों आपके आ गए हैं। और एक आपका क्लॉज 36 है, इसको हमने ओमिट कर दिया है, लास्ट ईयर तक था क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के लिए था कि अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्योंकि अवेलिश हो गया है तो ये क्लॉज आपका ओमिट हो गया है। तो ये केवल 5 क्लॉजेज के अंदर आपके अमेंडमेंट हैं, तो प्लीज एंश्योर बिफोर फाइलिंग दिस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कि आप जो है उन अमेंडमेंट को करें। इसके अलावा ये 5 अमेंडमेंट है। एक थोड़ा सा जो है कि हम देखते हैं कि कुछ एरर होती है जब हम टैक्स ऑडिट फाइल करते हैं, तो बी एंश्योर कि भाई हम उस एरर को नहीं करें, थोड़ा सा सावधानी रखें, उनमें थोड़ा सा ध्यान दें फाइलिंग के टाइम पे, जिससे कि हमारे प्रोफेशन की भी और जो डिपार्टमेंट कई बार कहता है कि कुछ भी रिक्वेस्ट मेंबर नो करके आगे भेज देता है, कुछ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का भरता ही नहीं है, टार को भरता ही नहीं है, तो वहां पे जो हम कुछ कर रहे हैं तो जो कुछ कॉमन एरर है उनको हम देख सकते हैं। कुलदीप जी देख लें। सर अभी टाइम है अपने पास तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत ज्यादा नहीं है, मैंने जो कुछ मेरे को एक्सरसाइज हुई है जो मेरे को लगा कि जहां पर हम एरर करते हैं तो उसकी हम बात कर सकते हैं। ये देखिए, जो हम टैक्स ऑडिट के टाइम पे जब हम करेंगे तो थोड़ा सा क्या क्या चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या क्या हमको थोड़ा सा है। जब हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बनाएं, जब हम आपकी जेसन फाइल बनाएं, तो आप ये देखिए जहां पे 3CB है यानी कि नॉन कंपनी एसएससी, वहां पे हमको जो क्लॉज सेलेक्ट करना होता है तो 44AB का क्लॉज ए से ई कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जहां हम फॉर्म 3CA कंपनी के केस में करेंगे तो वहां पे केवल थर्ड प्रोविजो ही हमको सेलेक्ट करना है, वहां से हमको 44AE से AD वहां तक नहीं करना है। तो ये एक थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। कई बार क्या है, कंपनी की ऑडिट है, 2 करोड़ का टर्नओवर है, हम उसको 44A के AB क्लॉज ए के अंदर कर देते हैं। 10 करोड़ का टर्नओवर है, हम 44AB क्लॉज ए के अंदर रिपोर्ट फाइल कर देते हैं, वो हमको नहीं करनी है। हमको जहां भी फॉर्म 3CA है वहां पे हमको थर्ड प्रोविजो का ही जो है सेलेक्ट करना है। एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जो रिसेंट आपके अमेंडमेंट आए, जो हमारे क्लॉज आए 115 BAA और 115 BAB लास्ट ईयर आया था और 115 BAC और BAD इस करंट ईयर में आया है। तो BAC इंडिविजुअल HUF के लिए, कंपनी के लिए BAA और BAB है। बहुत क्लियर कट है, यहाँ पे यदि हमने इनको ऑप्ट किया है तो हमको किसी भी तरीके का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, बहुत क्लियर है। तो कई बार अभी ये देखा गया है कि हम क्लॉज 33 जो चैप्टर 6A के डिडक्शन है, हमने क्लॉज 15 BAC यदि ऑप्ट किया है तो प्लीज एंश्योर कि वहां पे हम जो है जो क्लॉज 33 है 10 और या 10AA वाले डिडक्शन है वो आप अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में 3CD फॉर्म के अंदर फिल नहीं करें। ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, क्योंकि यदि
हम कह रहे हैं एक तरफ यदि हमने 15B AC को जो है आपने ऑप्ट किया है, उधर हम कह रहे हैं चैप्टर 6A के डिडक्शन भी मिलेंगे, फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। तो प्लीज एंश्योर। एक कई बार जो क्लॉज 2 जो एड्रेस आता है, कई बार ये आता है कि कंपनी के केस में या LLP के केस में हम एड्रेस कौन सा मेंशन करें। तो एड्रेस जो मेंशन करते हैं तो क्या वही एड्रेस मेंशन करें जो MCA की साइट पर है या LLP की साइट पे। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट है वो ये कहता है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असेसी ने असेसमेंट पर्पजेज के लिए जो दिया हुआ है वो एड्रेस आपको मेंशन करना है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपका जो है MCA के पोर्टल पे रजिस्टर्ड एड्रेस हो या और कोई एड्रेस हो। तीसरा जो है नेचर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। कई बार एक हो सकता है कि कोई एसएससी आपका मोर देन एक बिजनेस करता हो या मोर देन एक उसकी एक्टिविटी हो, तो हम केवल कई बार ये देखा गया केवल एक एक्टिविटी को भर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो है कि आप सभी तरीके की जो मेन एक्टिविटीज हैं उनको आप भर दें और वहां पे जो उनका कोड है उसको डालें। एक आता है कि 11 बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 44AA। तो अब क्या होता है, कई बार हम ये देखते हैं कि आप ये देखिए 44AA बिजनेस के केस में एप्लीकेबल नहीं है। फिर भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन, कई बार हम उसमें जो है आपका जो है प्रेस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन में 44AA में हम डाल देते हैं और डाल देते हैं कि ये प्रेस्क्राइब्ड है। ये आप इंश्योर कर लें, केवल ये प्रोफेशनल के केस में ही है। तो जो यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रेस्क्राइब्ड है, बिजनेस के केस में आपको 100% नो लिखना है, ये प्लीज इंश्योर करें। एक आता है लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन एंड एड्रेस। कई बार क्या होता है कि हम उसमें आता है कि लोकेशन ऑफ मेंटेन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, कई बार हम डालते नहीं। आप ये देखिए ऊपर हमने जो एड्रेस भरा वहां से आपकी मान लीजिए हो सकता है कि एक एसएससी की 2 यूनिट हो, 2 जगह उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होती हो सकता है 5 यूनिट हो। तो आपको अपनी जहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट एसएससी मेंटेन करता है वहां पे आपको उसकी लोकेशन स्पेसिफाइड करनी है, ना कि केवल आप कह दें कि हमारी ये केवल एक ही जगह रहती है। जहां भी एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है तो वो लोकेशन आप डालनी है और साथ के साथ में किस लोकेशन पे कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं वो डिटेल भी आपको देनी होती है। कई बार यहाँ पे हम एरर कर देते हैं कि बहुत सारी लोकेशन नहीं डालते या सभी लोकेशन पे जो रिलेवेंट हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट है वो नहीं डालते। ऐसे ही कई बार हम क्या करते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड बाय इन कंप्यूटर सिस्टम, उसमें हम नहीं करते, वो छोड़ देते हैं हम। तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई कंप्यूटराइज सिस्टम में या कैसे है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड नेचर ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एग्जामिन। यहाँ पे हम बहुत सी चीजें नहीं लिखते हैं कि जो क्या चीज लिखनी है। हमारा गाइडेंस नोट भी बहुत स्पेसिफिक, जो टैक्स ऑडिट के ऊपर इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट है बहुत स्पेसिफिक कहता है कि आपको reference to all such supporting evidence relevant document is also required to be made under this clause। तो जो हम कई बार इनवॉइस है, रिसीट है, वाउचर है, बिल्स है या सेक्रेटरियल है, मिनट्स है, जो भी आपने चीज चेक करी है प्लीज इंश्योर कि वहां पे वहां डाल दें। कई बार हम लिख देते हैं कि केवल हमने तो कैश बुक, लेजर, जर्नल ये चेक करी है। अरे भाई आपने ये सब चीजें चेक करी है, इनके एविडेंस के साथ में क्या चेक किया है प्लीज इंश्योर कि यहाँ पे इस कंप्लीट डिटेल दें, क्योंकि हमारा ये गाइडेंस नोट भी इसके बारे में बहुत कहता है। क्लॉज 13D ICDS, अगेन कई बार तो हम उसको भरते ही नहीं है, जबकि देखिए अकाउंटिंग पॉलिसीज और आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपका ICDS डिफर हो सकता है। तो आपको जो है यहाँ पर कौन कौन से ICDS है, उसमें क्या प्रोविजन है, उसको आप छोड़ दें। तो ये सब चीजें आपको यदि एप्लीकेबल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिख दें, निल लिख दें, लेकिन आप इंश्योर करें कि ICDS का जो क्लॉज 13D है उसको पूरा फुल करें। जितने भी ICDS है अपने 1 to 10 तक जितने भी हैं उन सबको आप डालें। क्लॉज 13F अगेन ये ICDS का है। तो यहाँ पे आपको जो भी हमारा डिस्क्लोजर्स हैं वो दें, और यहाँ पे यदि कोई आपका डेविएशन है वो आपको देना पड़ेगा। यदि कोई ICDS की वजह से कोई डिफरेंस है, अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई डिफरेंस है तो आपको देना पड़ेगा। जैसे हम
जैसे शेयर्स का भी पिछले 2 साल में बहुत कुछ हुआ है। यदि आप बिजनेस में आपका शेयर्स के तो आईसीडीएस का जो है वैल्यूएशन का तरीका है समथिंग डिफरेंट और आपके अकाउंटिंग पॉलिसी का समथिंग डिफरेंट है। तो यहाँ पर यदि आईसीडीएस के हिसाब से कोई चेंजेज हैं तो प्लीज एंश्योर कि आप आईसीडीएस के हिसाब से जो भी इनकम में एडिशन होना है या डिडक्शन होना है उसको आप इंश्योर कर लें। जनरली हमारे जो मोस्टली मैक्सिमम मेंबर्स के में ये खाली रहता है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक डालते ही नहीं है, आपको जो है डालना है। इसमें आपका जो आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो आपका रॉ मटेरियल का क्या वैल्यूएशन है, आपका जो है फिनिश का क्या है, आपका डब्ल्यूआईपी का क्या वैल्यूएशन है, प्लीज एंश्योर कि यहाँ पे हम उसको भी डालें। ये भी हम कई बार, और इसमें एक और क्वेश्चन साथ में पूछता है कि वेदर देयर इज ए चेंज इन द मेथड ऑफ वैल्यूएशन। तो यदि चेंज है तो आप यस करें, नहीं तो उसको नो जरूर करें। 145 ए 99% खाली रहता है। मोस्टली वी आर नॉट हैबिचुअल टू फिल इस डेविएशन 145 ए। सेक्शन 145 ऑफ ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इन्वेंट्री का वैल्यूएशन इंक्लूसिव मेथड पे बात करते हैं। अब आप बात करते हैं हम जीएसटी के एरा में, तो जीएसटी के एरा में क्योंकि हमको सारा इनपुट हमको मिलता है, आउटपुट मिलता है, तो एक्सक्लूसिव मेथड है। प्लीज एंश्योर कि आप जो 145 ए का जो भी इफेक्ट है वो ले लें। मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा जो गाइडेंस नोट है वो रेफर पैरा 23 ऑफ आईसीआई टैक्स ऑडिट गाइडेंस नोट, ये जीएसटी के बाद में पैरा नंबर दिस वन पर आपका लिखा हुआ है कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव मेथड क्या है और उसका इफेक्ट कैसे लेना है। तो ये आप एक बार इंश्योर कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन इंक्लूसिव मेथड से है और अभी करंट सिनेरियो में देख रहे हैं तो हमारा वैल्यूएशन जो है एक्सक्लूसिव मेथड से है। तो जो भी प्रॉफिट और लॉस पे आपका इंपैक्ट आए तो वो आपको यहाँ पे उसका इफेक्ट देना चाहिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। एक जो आपका डेप्रिसिएशन क्लॉज 18 डी, डेप्रिसिएशन का जो चार्ट है, कई बार हम जो टार में अपलोड करते हैं और जो आप फिजिकली साइन करते हैं उनकी डेट में वेरिएशन से उनमें फर्क आ जाता है। तो आप इंश्योर करें कि जो आपने फिजिकली जो टार साइन करी है या आपने जो पीछे आपने अनेक्जर बनाया फिक्स असेट का, वो सब आपका मैच हो। प्लीज चेक करें इसको। क्लॉज 22 एमएसएमईडी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अभी एमएसएमईडी के तहत आपको जो है 45 डेज के अंदर पेमेंट मैंडेटरी हो गया इफ द वेंडर इज एमएस रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई एक्ट। कई बार आप देखेंगे कि जो है आपने जो है आपकी एनुअल रिपोर्ट है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, वो आप बता रहे कि एक आपने एमएसएमई के तहत इंटरेस्ट पे किया है, लेकिन यह क्लॉज हमारा खाली हो जाता है। तो यदि आपने जो एमएसएमई को इंटरेस्ट पे किया है तो बी एंश्योर कि आपका क्लॉज 22 के अंदर उसको हम फाइल करें। क्लॉज 31 एंड 30C रिगार्डिंग लोन रिसीव्ड एंड रीपेमेंट सेक्शन 269SS एंड 269T। हम क्या करते हैं कि एक बार कहीं जनरली जो जिससे पैसा ले रहे हैं रीपेमेंट कर रहे हैं तो उसको हम कहीं दिखाते नहीं, उसका एड्रेस वगैरह नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने केवल जयपुर लिख के छोड़ दिया या आपने सिटी का नाम लिख दिया, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उसका एड्रेस लिखें। यदि इफ यू हैव द पेन प्लीज टेक, वहां पे आप पेन नंबर भी डालें। और जो मोड ऑफ पेमेंट है वो एक टफ टास्क है, लेकिन यदि सरकार ने डिपार्टमेंट ने हमसे मांगा है कि भाई आपका जो पेमेंट या मोड ऑफ पेमेंट है वो आईएमपीएस है, आरटीजीएस है, एनईएफटी है, क्या है, यदि जब तक ये मांगा है तो हमको देना चाहिए। कई बार हमको इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम डाल के आगे चल जाते हैं या अकाउंट पे ही चेक है, ये हमको देना चाहिए। यदि गवर्नमेंट मान रही है तो उसको हमको देना चाहिए। सर इसमें छोटी सी क्वेरी थी। अगर किसी पार्टी का लोन का सपोज मैंने उसको कोई गुड सेल करी है और उससे मेरा अगर अकाउंट नॉक ऑफ अगर होता है तो उसको मैं किस एंट्री में डालूं? उसको मैं किस एंट्री में डालूं? देखिए अकाउंट पे ही चेक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग भी नहीं है, तो एक अदर मोड आता है। ठीक है, तो आप उसको अदर मोड के अंदर डाल सकते हैं कि भाई यहाँ से मैंने उसको नॉक ऑफ किया है। एक अदर मोड का भी ऑप्शन है उसमें। नहीं तो अदर मोड का ऑप्शन में जाते अगर मैं करता हूँ कि सेल ट्रांजैक्शन या परचेज ट्रांजैक्शन व्हाटएवर द ट्रांजैक्शन हैपेंड,
तो क्या वो 269 एसएस की एमबिट में आएगा या नहीं आएगा, मतलब उसका नेगेटिव मार्किंग है या पॉजिटिव मार्किंग मान के चले उसको? तकलीफ तो है भाई, अच्छा आपने लोन को एक तरीके से आपने रीपे किस तरीके आपने लोन लिया, रीपे किया गुड सेल करके, आपके पास पैसा नहीं था, क्या करें आपने गुड सोल्ड कर दिया उसको। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो एज ए ऑडिटर हम बात करें, हम तो जो फैक्ट है उसको हम डिस्क्लोज करें। राइट। एक आपका क्लॉज 34A जो है बहुत पुरानी है, लेकिन फिर भी बहुत गलतियां होती है कि वहां पे हम जो आता है टोटल एक्सपेंसेज वाला जो कॉलम है ना, वो नॉर्मली हम क्या कहते हैं, जितने पे हमने टैक्स काटा उतने को हम टोटल एक्सपेंसेज में डाल देते हैं। प्लीज एंश्योर कि ये आपके जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच हो, आपके रिलेवेंट फिगर आपके मैच हो, है ना। तो ये आपके मैच हो, क्योंकि क्या होता है आपने सैलरी डाली, हो सकता है आपकी सैलरी बहुत है, वर्कर्स को है सैलरी, लेकिन 5 जनों की केवल उस पर टीडीएस कट रहा है। तो आप कई बार क्या होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर में एंड उसमें सेकंड कॉलम जो आता है कि कितने पे जो है टीडीएस कटना चाहिए था, थर्ड कॉलम आता है कितने पे टीडीएस काटा है। तो जो फर्स्ट कॉलम पे मेरा कंसर्न है, तो वहां पे आपको ध्यान दें कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर, दैट शुड बी मैच विद योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक आता है मैन्युफैक्चरिंग के जो हम क्वांटिटिव डिटेल वगैरह देते हैं, तो आप ये देखिए कि हम उसमें डिटेल भी दे देते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन उसका यील्ड वगैरह जनरली हम निकाल के नहीं देते हैं कि क्या है परसेंटेज ऑफ यील्ड, क्या है, सब 0 कर देते हैं, और ना ही हम इसके बारे में कहीं आगे हम क्वालिफिकेशन या वो डालते हैं। तो जहां भी आप मैन्युफैक्चरिंग डेटा दे रहे हैं, तो वहां पे क्या उसका यील्ड है, क्या शॉर्टेज है ना, ये सब हमको फीड करना चाहिए। और एक है जो ग्रॉस प्रॉफिट टर्नओवर, तो यहाँ पे हमको एक चीज देखनी है कि ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग के केस में ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है। हमारा गाइडेंस नोट भी बहुत साफ साफ कहता है। कई बार क्या करते हैं हम प्रोफेशनल के केस में भी ग्रॉस प्रॉफिट लिख देते हैं, तो प्रोफेशनल के केस में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा। तो ये एक मेरा एक छोटा सा होता है कि जो हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भरें, तो एक इसको ध्यान दें, इन जो कॉमनली एरर है इनको हम देखें। तो दिस इज all from my side. Thank you, Kuldeep ji, for giving the opportunity me. If any member have any query, we can discuss on that one. यस सर, कुछ क्वेरीज है तो मैं 1 by 1 में मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा। सबसे पहले सीए रवि गुप्ता जी। हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है सर। Sir, in case of TDS clause number 34, Yes. where we have to give key we have made a payment of interest and TDS has been deducted on the same, but there are parties who has given 15(6) and 15G and H for non-deduction of TDS. So total expenditure will be 100 and expenditure on which TDS is required to be deducted is 80. Then the remaining amount of 20 should be disclosed in lower deduction column, or should we give the remark that the 15GH has been received for this much amount? नहीं, उसमें क्या होगा सर, देखिए आपको टोटल में तो वही डालना है कि जो आपने इंटरेस्ट पे किया है। Yes sir. ठीक है, जो आपका मैं एक बार 34 का एक बार निकाल लेता हूँ। देखिए जो आपका टोटल है उसमें आपका डालना है, उसके बाद में कितने पर आपका टीडीएस कटना है। नेट द अमाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ रिसीप्ट और नेचर स्पेसिफाइड आउट, टोटल आ गया। टोटल अमाउंट ऑन विच टैक्स वाज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्ट और कलेक्ट आउट ऑफ 4, कितने पर आपको टीडीएस काटना था या नहीं काटा, ये इसमें आप डाल देंगे। जितने पे आपने काटा वो आ जाएंगे। अब आता है कि जितना टीडीएस काटा वो आ जाएगा। द टोटल अमाउंट ऑन विच टैक्स वाज डिडक्टेड और कलेक्टेड एट लेस देन स्पेसिफाइड रेट आउट ऑफ 7। तो यहाँ पर जो 15 CSCB का है, यहाँ पे हम उसको डालते हैं कि ये हमारा जो स्पेसिफाइड रेट थी, लेकिन क्योंकि इस पे 0 डिडक्शन आ जाएगा, इस पे हमारा 0 डिडक्शन रहेगा। नहीं तो it will be whether the while scrutinizing the same whether the query may be raised or not. Meaning we are not doing the same, we are writing in the remark column because we thought कि if we write in the column of lower deduction whether it will be taken in a correct sense or। रवि जी अपनी तरफ से डिस्क्लोजर जाना चाहिए। यदि आप रिमार्क में भी एक बार डिस्क्लोजर डाल रहे हैं, हाँ, तो ये हो जाता है कि मेरी तरफ से डिस्क्लोजर है कि इस पर 15 CBCA था,
बस इसलिए नहीं है। तो मेरा ये कहने का इतना पर्पज है कि हमारी तरफ से डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए कि ये चीज है। नहीं, मैं सर इसमें दूसरी चीज समझना चाह रहा हूँ कि 100 रुपए थे, 80 पे हमने काट लिया, रिमेनिंग 20 हमने नहीं काटा, वो अगर हमने लोअर वाले कॉलम में शो किया तो नहीं, वो इसमें क्या होगा सर, देखिए हम रिक्वायर्ड कितने पे थे, 80 पे, तो यहाँ पे मेरा 80 पे था, 80 पे काट दिया। नहीं टोटल एक्सपेंडिचर 100 था, total expenditure is 100, TDS dated on 80, 20 has ओके not been dated because of 15 GH, है ना? ओके। Now the same should be reported in column number 7 or should be reported in remarks column, आप रिमार्क्स में डाल दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा इसको। है ना सर? क्योंकि उसमें they might take in the negative अभी sense. अभी क्या है, नए सिस्टम के बारे में बहुत इंश्योर नहीं है किस तरीके से बिहेव करेगा, तो आप रिमार्क में डाल दें, ज्यादा बेटर रहेगा। Okay sir, thank you. Yes, sir, one more query from Mukesh Agarwal ji, CA. Sir, what is the turnover and profit in case of stock market in tax audit report? यस, देखिए अभी बात करें हम टर्नओवर की, तो जो डेरिवेटिव है, जहाँ पे हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में अभी पिछले 1 साल में खूब लोगों ने काम किया है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस में आपको जो चाहे आपका लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपका टोटल सेल वैल्यू काउंट नहीं होगी फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस में। वहां पर आपका जो लॉस और प्रॉफिट है वो दोनों मिलके आपके टर्नओवर काउंट होगा। यहाँ आपने कोई फ्यूचर का सौदा किया, उसमें आपको लॉस हो गया और एक में आपको प्रॉफिट हो गया, तो दोनों मिलके जो है आपका टर्नओवर काउंट होगा। शायद मुकेश अग्रवाल सर को मैं अनम्यूट करता हूँ एक बार, वो और क्वेरी अगर इसके रिगार्डिंग। यस मुकेश अग्रवाल सर, मुस्कान अग्रवाल जी। Sir, sorry, my name is Muskan Agarwal, not Sorry, Mukesh. sorry. Sir, actually, I want to ask about profit also. प्रॉफिट How? Yes, sir. किस चीज का? डेरिवेट एफ&ओ के बात कर रहे हैं आप, या शेयर स्टॉक मार्केट में किस चीज के लिए आपको स्पेसिफिक क्वेरी क्या है? मुस्कान जी, शायद कुलदीप जी वो सर अनम्यूट। मैं, हाँ नहीं, मैं अनम्यूट करने के लिए। Hello. यस Sir, actually, I want to ask about profit in stock market, security market. नहीं, अपने को प्रॉफिट आ रहा है तो देखिए दो तरीके का आपका शेयर मार्केट में आप काम कर सकते हैं, एक इन्वेस्टर काम कर सकते हैं, एक आप बिजनेस के रूप में काम कर रहे हैं। तो अपने Sir, को business. के रूप में आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ दो हैं, एक तो आपका कैश मार्केट में काम होता है, एक आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन जो आपका एफ&ओ डेरिवेटिव्स में काम होता है। अब आपको कैश मार्केट के बारे में बताना है या Derivative. डेरिवेटिव में बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि इसमें हमारा जो, देखिए आपका जब डेरिवेटिव हम काम करेंगे उसमें हमको प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। Yes, sir. तो जो टर्नओवर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रॉफिट और लॉस दोनों मिलके टर्नओवर काउंट होंगे। Okay. सपोज करिए आपने 5 करोड़ का प्रॉफिट किया Okay. और 4.5 करोड़ रुपए का लॉस हो गया, नेट में तो आपको 50 लाख की कमाई हुई, लेकिन Yes. इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो टर्नओवर है वो 9.5 करोड़ रुपए का है। तो कई बार क्या होता है कि आपका जहाँ पे बिल्कुल बॉर्डर लाइन होता है, आप जो आपके टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के, यदि मान लीजिए केवल यही बिजनेस है तो आपका जो 44 AB की लिमिट है, जो हमारी जो 44 AB के क्लॉज ए का जो प्रोविजो है, उसमें 5 करोड़ रुपए तक की एक कंडीशन है कि यदि हम हमारे 5% 95% सारे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग के थ्रू पेमेंट आ रहे हैं और एक्सपेंसेज है, तो 5 करोड़ तक आपको जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार ये होता है कि दोनों मिलकर नेट में मेरा तो जो है जी 1 करोड़ ही कमाया या 50 लाख ही कमाया। Yes, sir. अगर आपको देखना है टैक्स ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन दोनों को जोड़ के आप देखिएगा। और प्रॉफिट शो होगा नेट ऑफ करके। प्रॉफिट तो नेचुरली वो आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस में एक तरफ आपकी इनकम एंड लॉस है, जो नेट है वही आपका प्रॉफिट होगा, उसमें से आपके जो भी एक्सपेंडिचर्स है वो कम हो जाएंगे। एंड सर मुझे पूछना था कि 8% की लिमिट इस वाले बिजनेस पे भी अप्लाई होती है? देखिए मना तो कहीं किया नहीं है। ओके। मैं मुस्कान जी के लिए मैं एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि जयपुर ब्रांच ने एक इनकम फ्रॉम शेयर्स एंड एफ&ओ कमोडिटी फॉरेक्स एंड हेजिंग के ऊपर एक सेशन किया था, जिसमें सी अनु भाटिया जी उसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे। उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैंने चैट बॉक्स में भी शेयर किया है। फॉर मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पर्टिकुलर सब्जेक्ट यू कैन रेफर दिस पर्टिकुलर वीडियो।
Thank you, sir. Thank you for this. Anyone else? सर एक और क्वेरी है सर, हाउ टू रजिस्टर डीएससी इन ARCA लॉगिन? सीए अगर अपना डीएससी रजिस्टर कैसे करवाए, उसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा? मैं वापस ये वाकई में मैं भूल गया, हम सोचा हम तो कर लेंगे। ये कुलदीप जी बहुत सिंपल है, आपको अपने इंडिविजुअल लॉगिन में जाके अपना डीएससी रजिस्टर करना है। ARCA में फैसिलिटी नहीं है। जैसे कंपनी के केस में डायरेक्टर और पार्टनरशिप फर्म LLP के केस में जो पार्टनर के इंडिविजुअल लॉगिन में जाके आप अपना डीएससी रजिस्टर करेंगे, ऐसे ही अपने सीए को अपना ARCA के अंदर की बजाय अपने इंडिविजुअल लॉगिन में जाके वहां पे आप अपना डीएससी रजिस्टर करें, आपको ARCA में नजर आ जाएगा। ओके, और कोई क्वेरी किसी मेंबर की? आई थिंक दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोग्राम जिसमें कोई टॉपिक को लेकर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, हाउ टू फाइल टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, जिसका लाइव डेमो रहा इसमें। और इसमें जो आज के हमारे सेशन एक्सपर्ट मिस्टर SS धाकड़ सर, CA SS धाकड़ जी, जो कि जयपुर ब्रांच के सीनियर मेंबर है, उन्होंने लाइव डिलिब्रेशन रहा टॉपिक पे, और इसमें बहुत अच्छी मेंबर्स की क्वेरी भी रिजोल्यूशन हुआ, और उसके ऊपर जो भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट थे उन सब पे डिस्कशन हुआ, टैक्स ऑडिट, अदर फॉर्म्स और फॉर्म्स इन केस ऑफ ट्रस्ट, और इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ। तो जयपुर ब्रांच की तरफ से मैं SS धाकड़ सर का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। थैंक यू सर, आपने जयपुर ब्रांच के लिए आपने टाइम निकाला, मेंबर्स को इलेबोरेट किया, आपने जो सब्जेक्ट की नॉलेज थी उसको शेयर किया, जो आपका वास्ट एक्सपीरियंस है उसका अनुभव हम सब कैसे लें, इस सब चीज़ों पर डिस्कशन रहा। और मैं धन्यवाद भी कहना चाहूँगा जो आज की ऑडियंस है उनका भी, क्योंकि जब तक ऑडियंस नहीं होगी तब तक कोई भी स्पीकर, कोई भी मैनेजमेंट कमेटी या कोई भी ब्रांच, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी प्लेटफॉर्म वो सक्सेस नहीं हो सकता अपने पर्पज में। और ये बड़ा अच्छा लगा कि आज जो गैदरिंग, जो डे मतलब स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन थी वही लास्ट तक रही। तो ऐसा लगा कि सिर्फ CPRs के लिए ही लोग जुड़े हुए नहीं थे, उनको एक्चुअली इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे नॉलेज चाहिए थी, और इस चीज के लिए लोग सभी अभी तक जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच सर। एक लास्ट क्वेरी ले लेते हैं CA हेमंत गुप्ता जी की, उन्होंने रेज हैंड किया हुआ, तो एक लास्ट क्वेरी। यस सर, हेमंत गुप्ता सर। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ धाकड़ जी का, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसको बताया है। और एक छोटी सी क्वेरी है सर, ये अपना 3CD के अंदर पॉइंट नंबर 16 है सर। ओके। उसके अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला जो कॉलम है, क्या उसको हम फिल करें? जैसे मान लो FD का ब्याज है, सेविंग खाते का ब्याज है, जो कैपिटल अकाउंट में क्रिएट कर दिया है, तो जो रिटर्न सबमिट करते हैं तो वो बोलता है कि इसको आपने ITR 3 के कॉलम नंबर 23 या 24 में ऐड नहीं किया है। तो क्या ये FD का ब्याज या सेविंग खाते का ब्याज ये कॉलम नंबर 16 में आना चाहिए, या केवल बिजनेस से रिलेटेड आना चाहिए? देखिए हेमंत जी, यदि अपन बात करें तो ये जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है पेन बेस है, लेकिन हम किसी भी इंडिविजुअल क्लाइंट के उसके पर्सनल अफेयर्स की ऑडिट नहीं कर सकते। जी। तो अपने को अपना स्कोप इसमें लिमिटेड कर दें कि भाई हमारी जो टैक्स ऑडिट है वो केवल और इसके बिजनेस अफेयर से रिलेटेड है। जी सर। तो क्या होगा, अदरवाइज तो फिर उसके इंडिविजुअल है, अब उसको आप कहाँ तक हम चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम दिखाने का मतलब है कि हमने उसकी पर्सनल अफेयर्स को भी ऑडिट कर दिया है। जी। तो यहाँ पे मेरा यही है कि आप उसको अपनी लिमिटेशन, अपने जो स्कोप है उसको लिमिटेड कर लें टू द एक्सटेंट ऑफ द असेसीज बिजनेस अफेयर ओनली। जी सर। लेकिन अपेरेंटली मान लो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया हुआ है इंटरेस्ट सर, तो आपने कैपिटल अकाउंट में किया, बिजनेस का आपने P&L में नहीं किया ना फिर। जी। या तो आप P&L के थ्रू करें तब अपन बात करें, यदि P&L के थ्रू नहीं किया है तो जो है आप कैपिटल अकाउंट के थ्रू तो ड्राइंग होगी या उसके एडिशन हो गया। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you so much, sir. I think all the queries has been resolved by you with your vast experience in the field of auditing and taxation. Thank you so much, sir. Once again, thank you, audience. And एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा
कि ये CPRs के पर्पज से ये वाला कैलेंडर ईयर खत्म होने वाला है दिसंबर में, आप सभी अपने CPRs कंप्लीट कर लें। प्रैक्टिसिंग CA के लिए अभी काउंसिल गाइडलाइंस के हिसाब से 2 CPRs कोड ऑफ एथिक्स पे और 2 CPRs स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पे भी करना जरूरी है, तो कृपया आप उस चीज के लिए भी करें। वी आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर टू हैव सच सेशन ऑन दीज 2 टॉपिक्स, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच धाकड़ सर, थैंक यू टीम, थैंक यू ऑर्गेनाइजिंग एंड पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू कुलदीप जी, थैंक यू जयपुर ब्रांच। मैं सभी मेंबर से, जो शुरू में कुलदीप जी ने रिक्वेस्ट करी थी, मैं आप सभी मेंबर से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि 3 और 4 दिसंबर को हमारे इलेक्शन हैं, आप वोट जरूर दें। और आपसे एक निवेदन है, आप अपनी मैक्सिमम प्रेफरेंस का यूज करें। आप क्योंकि देखिए, आप किसी को फर्स्ट देंगे, किसी को सेकंड देंगे, थर्ड देंगे, आपकी नंबर ऑफ प्रेफरेंसेज कितनी भी हो, आपके लिए सभी कैंडिडेट आप जितनी प्रेफरेंस देंगे, ये मान के चलिए आपने उन सबको वोट दिया है। तो प्लीज यूज योर मैक्सिमम प्रेफरेंसेज और ज्यादा से ज्यादा लोग इस लोकतंत्र की भागीदारी करिए, क्योंकि यदि हम वोट देने नहीं जाएंगे तो हम फिर काउंसिल को कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। तो हम वोट दें और उसके बाद ही हम फिर काउंसिल के को जो है दोष देने में या उनकी कोई बात करने में जो है संभव है, सक्षम होंगे। तो आपसे एक बार फिर निवेदन है, 3 और 4 दिसंबर को वोट देने जरूर आइएगा। धन्यवाद कुलदीप जी, धन्यवाद जयपुर ब्रांच और धन्यवाद सभी CA साथियों। थैंक यू सो मच, थैंक यू।